welcome to the first episode of our second series initiative that is TED It TED. And in this podcast, the first episode, we have Vishal sir here with us. Vishal sir is a great influencer and he has a good amount of reach on YouTube through the insights that he shares with us. So, sir, tell us something about yourself, our audience. सबसे पहले तो नमस्ते यशराज जी, नमस्ते सिमरन जी. First of all, thank you so much for hosting this interview or podcast, whatever you like to call it. And I hope your audience know a little bit about me. So myself Vishal Chaurasia, and currently I'm running YouTube channel HyperQuest, where we create scientific case studies on ancient Indian teachings. And also I'm trying to develop a platform named Shikshanam, where I wish to preserve ancient Indian heritage and philosophical school of thoughts. So that is all about my professional life. And if I talk about my personal life, so I'm from Ayodhya, and in Ayodhya itself I did my primary and secondary education. After that I went on to pursue my graduation from IIT Patna. After that I did a job in Bharat Petroleum and Corporation Limited. So I quit there and I started this content creation. So right now I'm doing this content creation on HyperQuest. So that's, I think, more than enough about me. सो सर, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि कैसे आपने यूट्यूब की तरफ या फिर सोशल मीडिया की तरफ या फिर एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी जो हम बोलते हैं उसके तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो? Actually, first of all, it all started when I was 12 years old. I used to write fictional stories. I mean, playing with magical realism, fantasy, sci-fi. I mean, मेरे पापा जो कुछ हॉलीवुड मूवीज ला के रख दिए उनको देखना, उनसे फिर कुछ कैरेक्टर्स, एक्शन हीरोज बनाना, ये सब मैं करता था. So I did that for a long period of time. But one fine day my father passed away, and उसके बाद घर की जो कंडीशंस थी अच्छी नहीं थी. So my mother used to do some job to like raise us up, and then मेरे भाई ने कुछ काम किया, so responsibilities आ गई. So I had to leave that thing, and then I had to focus on my academics. So academics पे ध्यान देते देते फिर ये हुआ कि चलो, actual what happened that in my family nobody knew about IIT. So my focus was on कि somehow कुछ ऐसा कर ले जहाँ पैसा ज़्यादा ना लगे. So I cleared Polytechnic district level, and I was so happy that I cleared Polytechnic, and right now I'm in Polytechnic and doing engineering. So after that, my mathematics teacher met me, fortunately, and he invited me over his place. So there I went, and he told me that this is not your, I mean, you are beyond this Polytechnic. And so he suggested some books, he suggested some coachings. But at that time I didn't have money, or my family didn't have money for coachings and stuff. So मैंने खुद से भी पढ़ाई की. 2 महीने बचे थे, 3 महीने बचे थे. I prepared by myself, and luckily I got through. So IIT हो गया. So it was big dream come true moment for me. So when I reached IIT, तो अब IIT में भी नया नया सब कुछ, because you see everybody is, I mean, the cream of India is there. So you need to compete against them. So वहाँ भी डर लगा कि I'm not from a big city or big coaching like Akash or Narayana, or so all those things were there, but still I had a belief. So मैंने कहा कि चलो इस चैलेंज को भी लेंगे. और so then I started preparing कि ओके IIT में आए इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हो गया है, यहाँ भी इज्जत बचानी है. तो वो इज्जत बचाने के लिए फिर I started working hard. I started doing things कि बैच में इज्जत रहे और ये रहे. So I used to like get rank in top 5, top 3. So I was the first person in my college in IIT who got the job, and I had 2 jobs in first go. So I did only 2 interviews and I was selected. So kind of it was like okay, अभी क्या है कि घर की सिचुएशन तो सुधर जाएगी. So I had education loans, so I paid them off. So उसके बाद वो करने के बाद फिर IIT के बाद ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, फिर टाटा मोटर्स और BPCL सच ह्यूज कंपनीज. सो वहाँ पे भी काम करने को मौका मिला, तो वहाँ भी लगा कि सब अच्छा जा रहा है. बट समहाउ आई वाज नॉट फीलिंग हैप्पी. सो उस समय अगर कोई मुझसे पूछता कि टेल मी अ मोमेंट ऑफ योर लाइफ वेर यू फील दैट इट इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो वहाँ पे मेरा क्या था कि नहीं भाई, ऐसा अभी कोई मोमेंट है नहीं. क्योंकि अभी लोग बोलते कि नहीं, जो आपने अचीव किया है तो
अगर आप जनरल पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ तो किया ही है। हम्म, और आई वॉज द फर्स्ट इंजीनियर इन माई फैमिली, और मैंने अपने फैमिली में मतलब आईआईटी इस तरह की चीज़ सुनी नहीं थी, तो उस तरह से तो आई वॉज लाइक वेल ऑफ, बट मुझे इंटरनली वो नहीं मिल रहा था। सो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि ऐसा क्या था जो मैं हैप्पी था। सो देन आई वेंट बैक टू दोज मेमोरीज, राइटिंग फिक्शनल स्टोरीज, रीडिंग बुक्स। तो मैंने फिर से फिक्शनल स्टोरीज लिखना शुरू किया, कुछ कैरेक्टर्स डेवलप किए, कुछ बनाया। उसी में यही सब सोचता था कि व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, वेयर दिस वर्ड हैज़ कम फ्रॉम, यही सब चीज़ें कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और फिर फादर भी चूँकि नहीं थे तो ये भी सोचता था कि क्या वो मुझे देख रहे हैं, मतलब जो एक टीनेजर सोचता है उस समय। और आई वॉज इन अर्ली 20s। तो फिर उसी के अराउंड स्टोरीज़ लिखना शुरू किया, और आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, क्योंकि उस समय इंग्लिश भी सुधारनी थी, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से आया था। और कॉलेज क्या है कि वो तो मल्टीकल्चरल कॉलेजेस होते हैं आईटीएम्स की, वहाँ पे तो साउथ का भी, मेरा रूममेट साउथ का है, या फिर तो यू नीड टू नो लाइक मेनी लैंग्वेजेस। तो उसको भी सुधारने में बुक्स पढ़ रहे हैं और फिक्शनल बुक्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने तो ऐसे करते करते प्रोफेशनली 2-3 स्टोरीज लिख ली, बट दे वर लेंदी कि 500 पेजेस बुक, तो ऐसे था। तो देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टू लिटरेरी एजेंट्स। सो जब लिटरेरी एजेंट्स के पास जाओ तो दे यूज टू लाइक पिक सम मिस्टेक्स इन दैट, कि अभी ये लेंदी है, आपको इसको कट करना पड़ेगा, अभी ये मार्केट रेडी नहीं है, इसकी अभी मार्केट नहीं है। सो आफ्टर एवरीथिंग आई रियलाइज्ड कि यू मस्ट हैव एन ऑडियंस ऑफ योर ओन, वेर यू कैन, कि आप अपना प्रोडक्ट लेके जा पाओ, तभी लोग सुनेंगे। सो देन आई थॉट कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर दिस। तो मैंने सोचा कि चलो सोशल मीडिया है तो जहाँ पे कुछ कर सकते हैं। इट वॉज वे बैक इन 2015 एंड 16। तो 16 के बाद मेरी जॉब लगी, फिर 17 में मैंने स्टोरीज लिखना शुरू किया। 18 में मुझे रियलाइजेशन हुई कि मेरा खुद का इंस्टाग्राम में कुछ होना चाहिए, जहाँ पे मैं कुछ भी शेयर करूँ। अगर इफ़ आई बी एबल टू बिल्ड एन ऑडियंस, देन मैं कुछ तो बता सकता हूँ कि मेरा ये स्टोरी है, कोई तो सुनने वाला होगा। सो देन आई स्टार्टेड ऑन दैट नोट। और उसके बाद फिर इंस्टाग्राम बनाया, तो कंटेंट तो चलता नहीं है शुरू में। सो कुछ दिन बनाने के बाद मुझे लगा शायद कॉमेडी चलेगी, क्योंकि लोगों को कॉमेडी पसंद है। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग मीम्स एंड बुक्स के ही अराउंड, कि इसके चक्कर में कोई कुछ पढ़ेगा। अभी तो आप देखिएगा मेरी एक लाइब्रेरी भी है, तो बुक्स मतलब आप प्रमोट करते थे। बुक प्रमोट करते करते देन आई स्टार्टेड रीडिंग सम फिलोसफीज एंड पॉपुलर साइंस बुक्स लाइक स्टीफन हॉकिंग और नील डिग्रेस टाइसन। सो वहाँ से और अच्छा लगा। और देन व्हेन आई क्रिएटेड कंटेंट ऑन दोज थिंग्स, फिलोसफी मिक्सिंग अप विद साइंस, तो ये चल गया। सो देन व्हेन people started liking this, I started reading more about this. So this is the loop जिसमें मैं अभी आ चुका हूँ, कि रोज पढ़ना है और रोज बताना है, बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग। तो ऐसे हुआ। और उसके बाद फिर पहले मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि आर एंशियंट स्क्रिप्चर्स कैसे इतने एडवांस या ऐसी बातें कर सकते हैं। तो फिर वो पढ़ते पढ़ते समझते समझते, चूँकि मेरा भी बैकग्राउंड उसी से था, साइंस से था, और चूँकि अलग एकदम ही करियर अलग कर देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये था कि चलो मेरी आईआईटी है, भले वो डिग्री मुझे काम नहीं आ रही, बट जो एक मेरा पैशन था साइंस फिज़िक्स के लिए, वो मुझे यहाँ भी दिख रहा है। तो वो एक स्मूथ करियर चेंज की तरफ गया। फिर उसके बाद 6 साल जॉब करने के बाद मुझे जब रियलाइज़ हो गया कि अभी मैंने अपने घर में सब कर लिया है, और अभी मेरे पास इतनी सेविंग्स तो है कि अगर नहीं भी चला तो मैं फिर प्रिपेयर करके फिर कोई जॉब लूँगा या कुछ करूँगा। जब इतनी कॉन्फिडेंस आ गया तो आई लेफ्ट। आई वॉज पोस्टेड इन भोपाल, सो आई लेफ्ट देयर एंड आई केम टू दिल्ली फॉर दिस ओनली। सो नाउ वी आर 10 people here and we all are very dedicated to our work. दिस इज ऑल। सर आपने बताया कि आप जब पॉलिटेक्निक कर रहे थे तो आपके मैथमेटिक्स के जो टीचर थे उन्होंने आपको पुश किया टुवर्ड्स आईआईटी, राइट? सो कैन वी से कि जो हमारे लाइफ में कोई ना कोई हमारा आइडियल गुरु होता है जो हमको इनिशियल डेज पे सही गाइडेंस देता है, ताकि हम अपने जो हमारे डिजायर टारगेट है, या फिर मे बी हमको उसकी नॉलेज ना हो कि हमारा ये पोटेंशियल है लाइफ में, बट वो हमको वो रास्ता दिखाते हैं, एक तरीके से मार्गदर्शक जिसको हम कह सकते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे वो आपके इनिशियल डेज के मार्गदर्शक थे, जिनकी वजह से आप आईआईटी में पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली आपकी पोटेंशियल क्या है, या वो आप अपने इनर सेल्फ से ही जानते हो। और वो हो सकता है कि कंस्ट्रेंट हो, क्योंकि आपने जितनी दुनिया देखी, वट एवर यू हैव सीन, वो उतना ही है, और सामने वाला आपको ज़्यादा अच्छे से जान रहा है।
So your parents or your colleagues or your spouse or even anybody who is looking at you, वो जानते कि आप कितना हो, and then if they guide and you know your true potential and then you realize that, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है. तो मेरे लिए तो बहुत लोग ऐसे, एक भी नहीं, उन्होंने बताया, तो उनके बताना तो बहुत अच्छी बात है, बट देन बहुत ढेर सारे ऑब्स्टेकल थे. जस्ट नोइंग दैट देयर इज IIT, यू नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट. तो उसके लिए फिर बुक्स के पैसे वो किसी दूसरे टीचर ने डोनेट किए. फिर उसके अलावा जो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने इस जो पिछले में बताया उसमें ये नहीं बताया कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे मैंने बहुत चीज़ें की. आई वेंट टू बिहार फॉर सुपर 30. मुझे लगा कि आनंद सर पढ़ा देंगे, सो आई वेंट देयर. तो आई गेव द एग्जामिनेशन एंड देन उसके बाद 4 राउंड के बाद नहीं हुआ. सो आई पर्सनली मेट हिम कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है मेरे साथ. एक्चुअली मेरी जो रैंक थी 12th में यूपी में, वो भी मेरिट में थी. तो उसका रेफरेंस लेके मैं सोचा कि आनंद सर हेल्प करेंगे. बट वो एक्चुअली स्ट्रक्चर है ना कि उस 30 में तो नहीं मैं था. और उसके बाद भी 20,000 25,000 आई हैड टू पे. तो वो 25,000 भी मेरे पास नहीं. सो आई केम बैक. फिर 3 महीने हैं, तो बेस्ट क्या हो सकता है, या तो खुद से पढ़ें. तो आई स्टार्टेड स्टडिंग बाय माई सेल्फ. फिर उसके बाद एक दोस्त का कॉल आया कि आप कानपुर आ जाओ. उस दोस्त को ये लगा कि अगर ये कानपुर आएगा तो मुझे पढ़ा देगा. कोचिंग में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसको ये था मेरे पापा के पैसे वेस्ट होंगे क्योंकि कोचिंग उसको समझ नहीं आ रहा, तो मुझे बुला लेगा. तो उसने मेरे वहाँ रहने के, वहाँ पे मुझे खाना खिलाने के उसने पैसे दिए. फिर मैं वहाँ पे गया हूँ तो मुझे भी लगा कि किसी कोचिंग में एंट्री मिल सकती है क्या, तो मैंने उसके कार्ड पे कोचिंग्स में घुसा हूँ, छुप के निकाला भी गया हूँ. सो ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं, लेकिन ये था कि किसी ने बता दिया कि तुम्हें यहाँ जाना है, तो वो अब मेरे ऊपर था कि आई हैड टू डू एवरी पॉसिबल थिंग टू रीच देयर. तो वहाँ मैंने वो चीज़ें की. फिर उसके बाद वहाँ पहुँचे और उसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है. इनफैक्ट उसमें मेरी दादी का भी है कि मैं ठंड में हम खाना बनाते हैं तो वो चली आई कि चलो ठीक है मैं खाना बना दूंगी. मेरी मम्मी का भी तो एवरीबडी एक हीरो बनता है, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कितने लोग होते हैं. तो आप जो बोल रहे हो कि एक पुश है, लेकिन उसके साथ मुझे लगता है कि आपके अंदर वो कन्विक्शन है, तो देर आर एटलीस्ट 100 पीपल बिहाइंड यू जो आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं. तो सर जैसा आपने बताया कि उसके बाद आपने IIT की तैयारी करी, देन आपने IIT का एग्ज़ाम दिया, यू वेंट देयर. सो IIT का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ का कल्चर कैसा था? क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना कि IITs में क्रीमी लेयर आती है जिनको बोलते हैं कि एकदम टॉपर्स होते हैं, राइट, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं. तो वहाँ का क्या कल्चर है, एंड जो आपका ये बिलीव था पर्टिकुलर इन एस्ट्रोलॉजी और इन वी कैन से स्पिरिचुअलिटी, राइट, तो इसका उस वहाँ पे कैसा क्राउड था और वहाँ के लोगों को कितना इंटरेस्ट था इस चीज़ में? एक्चुअल में ये जो आप इंटरेस्ट बता रहे, पहली बात तो आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोनॉमी की बात अलग है, बट उस समय तो इस तरह से मैं सोच भी नहीं. आई वॉज द पार्ट ऑफ यू ओनली, कि जिनको इसको नहीं पता है इस बारे में कि हमारा कुछ, हाँ, उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था. लेकिन IIT मेरे लिए एक थोड़ा सा कल्चरल शॉक था, क्योंकि अयोध्या और जो छोटी सिटीज़ में होते हैं, और ख़ासकर हम जैसे जो सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर के विद्यार्थी हैं, जो जिनको बताया गया है कि बड़ों का पैर छूना है और ये संस्कार हैं, आप कितने भी बड़े हो जाओ ये आपके रूट्स हैं और इस तरह से जीवन है, और भारत की संस्कृति के विषय में पता है. तो आप IIT जाते हो. मैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे मैं गया एक प्रोफेसर के और पैर छू लिया, तो उन्होंने मुझे डांटा. तो मेरे लिए कल्चरल शॉक था कि अच्छा यहाँ नहीं छूना है. इनफैक्ट सर भी कहना थोड़ा सा दिक्कत है, आप उनका नाम ही ले लो. यूजुअली प्रोफेसर के नाम से बुलाते हैं. हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत नया था. उसके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से भी होते हैं, सब तो नहीं होते, और कुछ लोग स्ट्रगल से भी आते हैं, लेकिन जनरली बहुत जीनियस होते हैं. और मैं इतना जीनियस नहीं था, और इन कंपैरिजन बस ये था कि मैं हार्डवर्क करके कर सकता हूँ. तो वो चीज़ें थी वो. और IIT एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बच्चे कर लेते हैं, मतलब क्योंकि उस जो ग्रिलिंग हुई है जहाँ आप पहुँचे हैं, उस ग्रिलिंग के आगे IIT के अंदर की ग्रिलिंग कुछ नहीं है. हाँ, ये है कि जो चीज़ें हैं वो आपको करनी है, और वो तो बच्चा हर कॉलेज का बच्चा करता है, ऐसा नहीं कि IIT कुछ स्पेशल है. लेकिन ये है कि
वो जो 4 साल थे मेरे आईआईटी में, उसने बहुत पर्सपेक्टिव चेंज किया। खासकर एक कुएं से निकाल कर एक एटलीस्ट नदी में तो छोड़ दिया, सागर नहीं तो नदी में छोड़ दिया कि भाई वो जो जिसमें तुम थे और जिसमें तुम टॉपर बन रहे थे जो बोर्ड एग्जाम में, वहाँ से अभी निकल आओ, ये दुनिया है, यहाँ पे तुम अपनी अभी देखो कि कहाँ हो। तो उससे एक रियलाइजेशन हो गई कि मैं कोई तोप तो नहीं हूँ, अभी बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। तो उनके बीच में फिर उनकी थिंकिंग को, उनके पर्सपेक्टिव को समझना। और आईआईटी में ये इसके साथ साथ गेमिंग भी बहुत की है। तो मतलब वो क्या है, वो मल्टी कल्चरल जो पूरा एक होता है, वहाँ ट्राई किया कि कुछ प्लेस किए जाएं, कुछ स्टोरी लिखता था तो कुछ मेरी स्टोरी पे कुछ नाटक होते थे, तो अच्छा लगता था कि बहुत कुछ करने को है। और धीरे धीरे उसी से इंस्पिरेशंस आती गई। और इनफैक्ट मैं तो ये सोचा था कि मैं मूवी डायरेक्टर बनूंगा। तो ये वो फेज़ होता है एक टिल द एज ऑफ 20, हाँ, वेरियस ऑप्शंस। तो उसमें क्या है कि बहुत चीज़ें, और जब आप बहुत चीज़ें कर भी सकते हो और मन में भी है, तो वो होता है ना कि सब कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। वो वाली फेज़ आ गई थी। तो जैसा आपने बताया कि जब आप कॉलेज में पहुंचे तो वहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन था, तो इस चीज़ से मैं रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि हमने भी बोर्ड एग्जाम दिया एंड वी वर टॉपर इन आवर स्कूल। देन वी वेंट टू एसआरसीसी एंड जब एसआरसीसी में पहुंचने के बाद हमने वहाँ का क्राउड देखा तो हमें पता चला कि अच्छा एक्चुअल में हम तो थे वहाँ के, बट यहाँ पे सारे हमारे जैसे हैं जो हर जगह से टॉप करके यहाँ पे जो आपकी क्लास में जिसकी लास्ट रैंक आ रही है वो भी टॉप। एग्जैक्टली। यहाँ पे रहने के बाद वी नो कि एक लेवल के सारे बच्चे जब एक साथ आते हैं तो वो एक डिफरेंट कंपटीशन होता है। वहाँ पे तुम ऊपर से सीधा नीचे आ जाते हो ऑन योर फुट्स, राइट। तो उसके हिसाब से जब आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी जब आपने एंटर किया, जब आप प्लेस हुए, तो was that a point of time कि आपने अपनी spiritual, like not spirituality enough, but जो content, जितनी भी knowledge आप ले रहे हो, how were you able to maintain that at that point of time? क्योंकि अभी के टाइम में भी हमें जितना कॉर्पोरेट एक्सपोजर कॉलेज लाइफ में मिल रहा है, ठीक है, भले ही हमने एंटर नहीं किया, वी आर इनटू दैट बस ऑन द वे, बट एक बार उसमें एंटर करने के बाद द सिचुएशंस वर्स होने वाली है, हमें पता है। इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना, इसमें अपने अंदर एक पार्ट बचा के रखना कि इसमें भी हमें एंटर करना चाहिए, इसके बारे में जानना चाहिए, दैट्स वेरी रेयर। तो व्हाट वाज दैट? कॉर्पोरेट में तो स्पिरिचुअलिटी ही याद आएगी आपको। ओके। कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो चीज़ें शुरू में थोड़ा सा हनीमून पीरियड जो बोलते हैं ना, यहाँ चलेगा आपका, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि जो प्रेशर है, फिर चीज़ों को संभालना, ठीक है, वो सब पार्ट ऑफ जॉब है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो करनी है। उसके साथ जैसे आपने बोला ना स्पिरिचुअलिटी, वो भी पॉइंट ऑफ, वो भी टाइम नहीं था कि जब स्पिरिचुअलिटी आई है। हाँ, ये था कि कुछ अलग करना है जो मैंने किया है पहले, जहाँ मुझे खुशी मिल रही थी, वो मेंटेन करना इज़ एन आर्ट। कि आप जॉब के साथ वो करना है जो आपका मन है। तो जॉब आपने की, अब मेरी जॉब के साथ क्या था कि मेरी नाइट शिफ्ट्स भी थी, तो रात में 10 से सुबह 8 तक जॉब है, फिर 8 बजे आके मैं सोचता था 2 घंटे कुछ कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सोऊंगा, सो के फिर करना, फिर जाना रहा। तो उसमें क्या है कि जितना कम डिस्ट्रैक्शंस हो आपके और फुल फोकस आपका ये हो कि जॉब और उसके साथ मुझे ये करना है, इतना इसको कर लेना है कि फिर मैं जॉब छोड़ सकूं। तो वो क्या है, वो तपस्या है 2-3 साल की, वो करना है, वो जो कर लिया फिर वो निकल गया और फिर डेवलप कर सकता है। या तो फिर जॉब ऐसी हो कि जिसमें मज़ा आ रहा हो, मेरे साथ वो था नहीं। अगर वो होता तो और अच्छी बात थी। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने कॉर्पोरेट लाइफ भी जी हुई है, राइट। तो जब आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो जब आप आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अगर तब के कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कंपेयर करें तो आज की मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत, क्योंकि आज हर चीज़ की 10 कंपनीज हैं। उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं मोनोपोली थी कंपनीज की, लाइक कार्स में इतनी ब्रांड्स नहीं थी, बाहर की ब्रांड्स भी इतनी इंडिया में नहीं आई हुई थी, या कोई भी एफएमसीजी सेक्टर ले लो या कोई सेक्टर ले लो, उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था। तो उस टाइम का वर्कलोड क्या था और आपको क्या लगता है कि उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी कि एक जो ये एस्पेक्ट है लाइफ का जहाँ से हम अपने आप को पीस दे सकते हैं, इनर पीस दे सकते हैं, उस टाइम पे ज़्यादा एविडेंट था या अब के टाइम पे लोगों को इसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए?
देखिए वर्क लाइफ बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा रहेगा अगर आप जब तक कॉर्पोरेट में हैं वो उसको भी आप लाइफ का पार्ट माने। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि ओके आफ्टर 5 आई विल बी लिविंग माई लाइफ, आपकी लाइफ हेल होने वाली है। क्योंकि फॉर सुबह 9 से 5 क्या है, फिर वो तो फिर आप संडे वेट करो या तो फिर शाम का टाइम। और तो उस वो जो पार्ट है आपका 9 to 5, वो भी अगर आपकी लाइफ का ही पार्ट है कि हाँ दिस इज़ लाइफ आई एम लिविंग, तो वो अच्छा है। और जहाँ तक आपने कंपटीशन की बात की, एक्चुअली आई वाज इन PSU। सो PSU में क्या है, मेरी तो थोड़ी मोनोपोली थी क्योंकि मैं पेट्रोलियम सेक्टर में हूँ, तो IOCL BPCL HPCL 3 है, मोस्टली रिलायंस का भी इतना नहीं है, तो हमारी तो थोड़ी मोनोपोली थी। लेकिन ये था कि रिसेंट कुछ ईयर्स में जो काम करने का तरीका था वो इनफैक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। लोगों को बाहर से लगता होगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं, बट टुडे बिलीव मी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप देख लीजिएगा तो काम करते हैं, दिन दिन रात रात उनकी लगी हुई है। तो वो है, और अभी और भी बढ़ ही रहा है क्योंकि अभी इंडिया अब जैसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। आप चाइना की हालत देख लीजिए आज से 10-20 साल, या जापान की, तो काम तो वो 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे कर रहे हैं। और यूथ ये अगर काम नहीं करेगा तो वो जो हम इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो वही फेज़ है अभी इंडिया का कि ग्रोइंग फेज़ है, इसमें यूथ ही जो है वो बूस्ट कर पाएगा। तो ये है काम, लेकिन मन का होगा तो 8 घंटे क्या 12 घंटे इंसान करेगा। तो इसलिए जितनी जल्दी आप पिक कर लें कि हाँ ये इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको काम पसंद आएगा तो वो आपको भी ग्रो करेगा और कंपनी भी ग्रो करेगी। अगर कंपनी आपकी वजह से ग्रो होती है तो आप बहुत ऊपर जाते हैं। तो यही है पिक करना कि दिस इज़ द राइट थिंग, और अगर नहीं है तो जल्द से जल्द निकलना है। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अगर नहीं है तो आप अपना लॉस कर रहे हो, कंपनी का लॉस कर रहे हो। कंपनी अगर ध्यान नहीं दे रही है तो बस ये है कि आपका चल रहा है, जिस दिन कंपनी ध्यान देगी तो आपको निकाल ही देगी। ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना भी चाहते हैं, जैसे सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, तो ये क्वेश्चंस स्पेसिफिकली मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, या जो थोड़े जहाँ पे कॉम्पिटिटिव कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो हमें क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स ऑफर होती हैं कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप उस PSU में भी जा चुके हैं और आपने वो कॉर्पोरेट लाइफ जी हुई है, तो अगर बच्चों को या हम कहें स्टूडेंट्स को कोई जॉब प्रोफाइल मिलती है जो उनके इंटरेस्ट की नहीं है, जैसे सपोज मेरा इंटरेस्ट मार्केटिंग फील्ड में है बट मुझे सेल्स फील्ड मिल रही है, तो क्या मुझे वो चीज़ चूज करनी चाहिए, या मुझे अपने आप को थोड़ा सा काम रख के आगे वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के एंड आगे बढ़ के दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट की फील्ड में जाना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है, ये तो आई थिंक कि आप बहुत सही उसमें हो कि आपको पता है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो जानते ही नहीं, उनको ये है कि जॉब मिल जाए। अभी तो ऐसा भी होता है, इवन IITs में होता है कि प्लेसमेंट हो रहा है तो मेरी प्लेसमेंट हो जाए। इनफैक्ट मैं जब फर्स्ट दिन जॉब पे जा रहा था, आई डिडंट नो कि मेरा काम क्या होगा या मेरी टाइमिंग्स क्या होंगी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे 12 लाख का पैकेज मिल गया है। तो अभी ये हो गया कि जब भी कैंपस प्लेसमेंट हो, और जो मैंने गलती की या जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी करते हैं, कि केवल प्लेसमेंट ना देखें, जॉब थॉरो देख लें, और अगर बिल्कुल नहीं पसंद है तो जस्ट बिकॉज कि अभी कुछ नहीं है करने को और कुछ करना ही है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है घर में तो करना पड़ता है, बट नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं जाना है। क्योंकि मैं गया, मैंने काम किया, और BPCL हैज़ बीन अ गुड सपोर्ट टू मी। उनके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन वो काम मुझे पसंद नहीं था, तो फिर वो 6 साल झेलना पड़ा। अगर वही कहीं और कर रहा होता तो मे बी पैसा कमाते हुए भी कुछ अच्छा मतलब काम कर रहा होता। तो इसलिए क्विट करना पड़ता है कि चलो ये नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए जब भी जो आपने क्वेश्चन किया उसका यही है कि मैं अभी के बच्चों से यही कहूँगा कि आप जॉब प्रोफाइल सही में देख लो, आपकी टाइमिंग्स क्या हैं, आपका काम क्या है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग पैकेज देखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं देखते हैं, या कंपनी का नाम देखते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, जॉब प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो नहीं देखा था, मुझे तो ये लगा टाटा मोटर्स में हो गया, मेरा BPCL में हो गया, काम क्या करवाएंगे, आई हैड नो आइडिया। तो उसके बाद जब मैं गया मुझे लगा अच्छा मुझे रात में आना है, ओ गॉड, अब छोड़ भी नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे पास तो ये है कि मुझे कोई पैसा देने वाला है। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपकी जनरेशन अगर ऐसा सोच रही है तो इट इज़ बेस्ट कि आप जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छे से देख लें। क्योंकि जस्ट बिकॉज, और अगर आपके पास ऑप्शन है तब तो बिल्कुल देखनी चाहिए जॉब प्रोफाइल्स। अब बात करते हैं आपके सोशल मीडिया करियर की। तो जब आप अपने कॉलेज डेज में थे तब भी आपको सोशल मीडिया में इंटरेस्ट था, और उस टाइम पे क्योंकि इतना सोशल मीडिया पॉपुलर नहीं था नहीं जितना था। आपके टाइम पे है,
तो उस टाइम पे सोशल मीडिया का क्या रेलेवेंस था, कितना लोग उसको सपोर्ट करते थे, क्या था वो थोड़ा हमें बताओ। सोशल मीडिया बैक इन 2011 एंड 12 इतना नहीं था। फेसबुक थोड़ा सा शुरू हुआ था, तो कॉलेज में तो ऐसा हम लोगों का कुछ सोशल मीडिया एडिक्शन या सोशल मीडिया का कुछ भी वो नहीं था। हाँ, ये है कि हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते थे, स्पेशली मी, अगर ऐसा कुछ करना था। 12-13 से शुरू किए थे तो अभी बहुत या हो जाता है, लेकिन ऐसा ना थॉट आया क्योंकि बहुत प्रेवलेंट था ही नहीं सोशल मीडिया। ये था कि यूट्यूब कुछ शुरू हुआ था और उसके बाद जब जियो रेवोल्यूशन आई तो और चीज़ें बढ़ गई। बट एट बैक इन दोज डेज कुछ भी ऐसा नहीं था कि नेट ही ये हो। मैंने कॉलेज में फिर मेरे वाईफाई आ गया तो फिर हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखने लगे, तो ये था। लेकिन ऐसा तो कुछ कॉलेज में तो नहीं प्लान हुआ था। हाँ, फेसबुक पे हम लोग पेजेस बना लेते थे अपने अलग अलग कुछ एक्टिविटीज़ के, तो इस तरह का ही सोशल मीडिया था। आज जितना प्रेवलेंट है कि बिना सोशल मीडिया के मुझे लग रहा है लोग खाना नहीं खाएंगे, तो वो वाला केस नहीं था उस समय। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, 7th 8th क्लास में हुआ करता था जियो, स्पेशली जब जियो नहीं आया था, तब के टाइम पे डेटा पैक्स इतने महंगे मिलते थे। लाइक मैं तब भी डेटा यूज़ करता था एंड दैट टाइम आई यूज़ टू डू 299 का रिचार्ज होता था एंड उसमें सिर्फ हमें 2 GB डेटा मिलता था, वो भी 2G। तो मैं क्या करता था कि मैं व्हाट्सएप वगैरह, जब उस टाइम पे व्हाट्सएप का भी इतना क्रेज़ नहीं था, जब मैं व्हाट्सएप चलाता था तो जस्ट व्हाट्सएप खोला, डेटा ऑन किया, मैसेज रिसीव हुए, देन बंद कर दिया, क्योंकि वी हैव टू यूज बंद दैट करते 2 थे। GB डेटा होल मंथ, 30 दिन तक, राइट। तो उस टाइम पे आपको क्या लगता है कि अगर ये जियो का रेवोल्यूशन नहीं आया होता और उतने महंगे डेटा पैक्स होते तो आज की क्या कंडीशन होती, कितना इंडिया कितना ग्रो कर पाता इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी? नहीं, बात जियो की नहीं, रेवोल्यूशन तो आना ही था। जियो लाता या कोई और लाता। जियो का नाम इसलिए आता है क्योंकि जियो ने फर्स्ट स्टेप लिया है। वो नहीं लाते तो एयरटेल कर, कोई ना कोई तो करता ही, क्योंकि जो चीज़ वर्ल्ड में हो रही है वो, इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है तो इंडिया में होना ही था। और इससे बहुत से सारे सेटअप जो है, हर चीज़, राजनीति से लेकर हर चीज़, इनफैक्ट आज जियो की वजह से स्पिरिचुअलिटी भी मैं कहूँगा कि लोगों तक पहुँच गई, कि घर बैठे भी लोग देख रहे हैं और उसके बाद अपने फेवरेट कथावाचकों की कथा भी सुन रहे हैं, कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो भी ले रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट जो है जनता से ज़्यादा कनेक्टेड है। पहले हमें पता ही नहीं था सरकार क्या, मुझे नहीं पता था 2012 में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ आज तो ये है कि सब पता है, अपोजिशन में क्या चल रहा है, सेंटर में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट स्टेट में क्या कर रही है। अब भले उसमें भी मिक्सअप हो सकता है इन्फॉर्मेशन का कि कितनी ट्रूथ है कितनी नहीं, लेकिन यह है कि घर बैठा इंसान ये जानता है कि हाँ मैं गवर्नमेंट से कनेक्टेड हूँ, या कोई भी पॉलिसी है, तो ये तो हर चीज़ को रेवोल्यूशनाइज किया है जो भी ये, और ये आना ही था। जियो का रेवोल्यूशन ना होता तो 2 साल बाद कोई ना कोई करता ही। सो एज यू सेड, आपके टाइम में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन नहीं था, ठीक है। तो कैन आई से, लाइक, अभी तक आपने अपने करियर लाइफ के बारे में जो भी बताया, यू आर ग्रेट इन योर एकेडमिक्स, लाइक आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि तब सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था। एज यू सेड, आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करके आप इजीली यू वर एबल टू अचीव जो आप करना चाहते थे। प्लस कॉलेज में जाके भी वही एकेडमिक एक्सेलेंस है, यू गॉट प्लेसमेंट्स, राइट। तो वो भी बहुत एसेंशियल पॉइंट होता है, क्योंकि एक क्राउड में रह के भी आपका इतना मोटिवेटेड होना, एंड यू वेरंट कनेक्टेड टू एनी इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, तो आपकी कंसिस्टेंसी और जो आपको अंदर से हमेशा पुश कर रहा था कॉलेज में भी, व्हाट वाज दैट थिंग, लाइक कैन वी से दैट सोशल मीडिया प्रोमिनेंटली तब नहीं था, तो इसका भी ऐसा कुछ देखिए, था? सोशल मीडिया नहीं था, इसका रियलाइजेशन भी तो नहीं था एग्जैक्टली, कि सोशल मीडिया एनी नहीं है। अदर डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि तब ऑफ कोर्स कुछ तो डिस्ट्रैक्शन होती नहीं, होगी बहुत, कॉलेज हाँ, में, हमेशा होती है, कुछ ना कुछ होता है। अगर सोशल मीडिया नहीं है तो उसे रिप्लेस करने के लिए कि हमारा ध्यान कहीं और भटकता रहता है, अगर कॉलेज में ये नहीं है तो बहुत बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप गेमिंग करते हो, होल डे गेमिंग चल रही है, रात रात भर जगते हैं हॉस्टल्स में, सुबह 5 बजे चाय पीने जा रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस तो हैं। लेकिन मेरा जो सिंगल मोटिवेटिंग फैक्टर यही था कि मेरी जो माँ है वो दिन भर काम करती हैं और 10 रुपये पाती है ना, और मेरा भाई पूरे महीने काम करते हैं तो 1,500 रुपये पाते हैं, और उसमें भी उस 1,500 में मुझे 500-700 रुपये दे दिए जाते हैं, घर का आधा हिस्सा। तो वही वो चीज़ है कि, तो अब जब इस तरह की सिचुएशन है जिसके, जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो देन यू विल हैव टू डू। और यही है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल जो लेस प्रिविलेज्ड हैं वही सक्सेसफुल होते हैं।
अच्छे भी लोग होते हैं, वेल ऑफ फैमिली के भी लोग सक्सेसफुल होते हैं, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता ही है। जो जो लेस प्रिविलेज्ड है उसके पास ये है कि भाई मुझे पहले भी घर संभालना है, तो वो उस वजह से जा रहा है। जो बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड है उसको पता है कि मेरी ये पोटेंशियल, उसको बताया गया उसके पेरेंट्स ने, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी वेल ऑफ हैं, तो उनको बताया भाई तुम्हारी पोजीशन ये है, वो मुझसे नीचे हो नहीं, तो वो उनकी मोटिवेशन अलग है। तो एवरीबडी हैज़ अ मोटिवेशन, तो ये मोटिवेशन थी। सोशल मीडिया भी होता तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया भी मुझे मतलब कैप्चर कर पाती, क्योंकि जब मोटिवेशन इतनी स्ट्रांग हो, इनफैक्ट मुझे आज भी याद है जब मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी दी गई थी 32,000 और 35,000, तो मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ने कहाँ से अरेंज किए हैं, एंड आई वाज क्राइंग कि कहाँ से आया होगा ये पैसा। 35,000 इज वॉज अ ह्यूज मनी, और उस समय तक मेरा स्कॉलरशिप भी सेंक्शन नहीं हुआ था, बैंक से लोन भी नहीं आया था, बट मेरे भाई ने इतना बोला था कि तुम्हारी फीस हो जाएगी। आई डोंट नो, अभी आज भी मेरी हिम्मत नहीं, मैं उनसे पूछूं कहाँ से आया था वो पैसा। सो दोज आर डेज जो मैं फिर से रिविजिट तो नहीं करूँगा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल या कुछ आगे बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो मोटिवेटिंग है, अलग है दूसरे से उसकी लाइफ में, जो उसको पुश कर रहा है। ग्रेट, इट्स ग्रेट कि आपने बताया कि कैसे आपके भाई ने आपकी मदद करी इनिशियल डेज में। इनफैक्ट मेरा भी यही बिलीफ है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए, एक इंसान को पुश करने के लिए उसके पीछे बहुत सारे हीरोज़ होते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या हमारे ब्रदर सिस्टर या फिर हमारे टीचर हों। तो इट्स ग्रेट टू नो कि आपने इतना स्ट्रगल किया लाइफ में, आप उस मुकाम पे पहुंच पाए। आते हैं अपने टॉपिक पे वापस, जो कि सोशल मीडिया है। तो आप सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं स्पेसिफिकली अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, अपने कल्चर से रिलेटेड। तो सोशल मीडिया पे आपको पता है ना कि फेक चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं। तो ये आपके लिए कितना डिफिकल्ट होता है फैक्ट्स को वेरीफाई करना, एंड कैसे आप ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा हमें बताइए। जब एक्चुअली में जब ये चलना शुरू हुआ हाइपरक्वेस्ट, तो एक फ़िलॉसफ़ी मैंने बना ली थी, उसको लिख लिया था कि देखो एक थिन लाइन है, जब आप धर्म की बात करते हो ना, तो कब आप पाखंड की बात करने लगोगे कोई भरोसा नहीं, कितने पैसे में आप बिकोगे वो लाइन होती है। तो एक थिन लाइन हमेशा वो मैंने बना ली थी कि रात में नींद अच्छी आनी चाहिए, काम चलता रहेगा। तो वो इसलिए मैंने बनाया था कि जो भी ऑथेंटिक होगा वही इस चैनल पे जाएगा। उस पे रिसर्च कितनी भी करनी पड़े, पहले मैं करता था, उसके बाद हमारे बीएचयू से भी एक टीममेट हैं, फिर हमारे एक आचार्य हैं बेंगलोर से, वो टीममेट हैं। तो हम लोग मिल के सब शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद जो मिलता है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें प्रोसेस यही है कि पहले, अब इसमें क्या है ना, कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं है, रिसर्च करने में दिक्कत नहीं, बहुत सी चीज़ें हमारे एंसेस्टर्स ने इतना काम कर दिया है कि मैं मर के भी चला जाऊंगा तो कंटेंट कुछ बचा रह बचा रह जाएगा। जाएगा, इतना भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत लेगेसी जो है इंडिया की बहुत डीप है। तो अभी क्या है कि हमें कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं, उस कंटेंट को पब्लिक के लिए डाइजेस्टेबल बनाना, क्योंकि आज भी किसी भी टॉपिक पे आप जाओगे तो रिसर्च वर्क बहुत हुआ है, हम रिसर्च पेपर्स भी पढ़ते हैं, रिसर्च वर्क भी बहुत हुआ है, स्कॉलरली वर्क बहुत हुआ है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं, एक लेडी है जो घर में खाना बना रही, मान लीजिए उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर पढ़ते हैं, और वो घर में खा लिए, और उसको हाइपरक्वेस्ट की वीडियो दिखती है, और एक वीडियो सेम टॉपिक पे एक वीडियो दिखती है जो रिसर्च वर्क की है, तो रिसर्च वर्क की वीडियो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी, क्योंकि उसको नहीं उस तरह से सुनना है। लेकिन हम उस रिसर्च वर्क को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इस विजुअल्स के साथ, स्टोरीज के साथ, एग्जांपल्स के साथ, कि वो जो लेडी हैं उनको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा जो एक्स फैक्टर है हाइपरक्वेस्ट का भी यही है कि जो स्कॉलरली वर्क है, रिसर्च वर्क है, और जो एक इंटरटेनमेंट वे ऑफ डिलीवरिंग है, उसको पास में लाना और कंटेंट प्रोड्यूस करना, यही वर्क करता है। इसके अलावा हम कुछ भी करते हैं तो वर्क नहीं करता है। इट्स ग्रेट टू नो कि आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं वो इतना वेल बैक्ड रिसर्च होता है कि बहुत उसकी ऑथेंटिसिटी होती है। ऑल्सो वी कैन से कि जो आजकल का सोशल मीडिया एरा है, इट्स लाइक इंटरनेट इज अ कर्स एज वेल एज ब्लेसिंग फॉर द यूथ, राइट। आपको रियल चीज़ें भी इंटरनेट पे मिल जाएंगी अगर आप ढूंढो सही से तो, और एट द एंड आपको फेक चीज़ें भी मिल जाएंगी। इट्स अप टू अस कि हम उसको कितना अच्छे से रिसर्च करके एंड उसकी ऑथेंटिसिटी कितने अच्छे से चेक करते हैं। एंड इट्स ग्रेट टू नो कि आप अपना जो भी वीडियोज या जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, वेदर इट्स ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वो प्रॉपर रिसर्च करके एंड देन आप प्रोड्यूस करते हो।
Thank you so much. Yeah. In fact, the visuals you use, the video editing, that's literally absolutely amazing because because we are a part of audience, right? हम देखते हैं कि आपके जैसा, आपके नीश का या आपसे रिलेटेड कौन कंटेंट बना रहा है, क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है, एंड वो पार्ट कंपैरिजन का कि कितना इजीली हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आपके कंटेंट को वर्सेस किसी और के कंटेंट को, तो उसमें आपका चैनल काफ़ी आगे है। एंड इतने डीप में रिसर्च करना ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में वी आर टोटली अनअवेयर, एंड उसके बाद उसे एक टीचर की तरह आके पढ़ाना समझाना, दैट्स ऑल्सो अ ग्रेट जॉब दैट यू हैव बीन डूइंग सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। टीचर, अब आपने बोला तो टीचर पार्ट तो ठीक है, बैकअप में रिसर्च टीम को क्रेडिट जाना चाहिए और योर एंड में होल एडिटर्स टीम। को जाना चाहिए। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं। हाँ, अर्ली डेज में कुछ एडिटिंग की है, लेकिन वो तो कुछ वीडियोस की है। बट अभी जो आपको विजुअल्स दिखते हैं, जो एडिटिंग की खूबी दिखती है, वो हमारे सुमित हैं, हर्ष हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान है उसमें। मेरा तो बस समझाने का योगदान है, उतना काम रहता है अभी के लिए, और रिसर्च करने में थोड़ी हेल्प करता हूँ मोस्टली। और जो कंटेंट मिलता है उसको क्यूरेट करना, उसको देखना कि ज़्यादा टफ तो नहीं है। मुझे समझ, पहली बात तो मुझे समझ में आया, अगर मुझे ही नहीं आ रहा तो या आपकी बहुत सारी वीडियोस है दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट उसमें इतना ज्ञान होता है कि नहीं, वो वीडियोस की लिस्ट दे दीजिए, हम उसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारा गोल ही नहीं है कि लोगों को बस ये लगे कि ज्ञान है बट हम तक पहुंचा नहीं। ग्रेट सर। सो ऑल्सो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो हमारे यूथ का जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम हो गया है। तो क्या टेक्निक्स आप यूज़ करते हैं कैसे, क्योंकि मैंने आपकी वीडियोस पर्सनली देखी हैं, इट्स वेरी इंगेजिंग। लाइक अगर आप स्क्रॉल करते हुए अगर आपकी वीडियो पे आए तो एक बार पहुंचने के बाद वो देख के जाते हैं, एंड इट्स अ आर्ट ऑफ ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, राइट? तो उसके पीछे क्या मेथड्स हैं, कैसे आप वो करते हो, वो थोड़ा हमें बताइए। ये है एक आर्ट, और मैं चाहता हूँ मेरी टीम में और लोगों के पास भी आर्ट आ जाए। अभी क्या होता है, जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स तो अच्छी लिखी जाती हैं, बट वो जो प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि फर्स्ट 3 सेकेंड्स आर इम्पोर्टेंट। तो वो जो 3 सेकंड हैं उसमें कुछ हुकिंग होना ही चाहिए। तो अगर शॉर्ट आप बना रहे हैं तो 3 सेकंड हुकिंग हो, कुछ क्वेश्चन आप पोज करो, या फिर कुछ ऐसा बात होनी चाहिए जो सच में उसका सोल्यूशन चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात है जिस पर आप अपना उसको डिकोड करेंगे या डिमिस्टिफाई करेंगे। तो जो भी है आप वो छोड़ दीजिए कि नमस्ते मैं ये बताऊंगा, ये छोड़ दीजिए। अब लोग नहीं उसको सुनना चाहते। इनफैक्ट मैं जब लॉन्ग यूट्यूब करता था वीडियोस आज से 7-8 महीने पहले, तो पहले मेरा एक इंट्रोडक्शन होता था कि आपका स्वागत है हाइपरक्वेस्ट पे, और हम यहाँ पर ये वीडियो बनाते हैं, आज ये एपिसोड है, इसमें हम ये बात करेंगे। तो ये नहीं है हुकिंग। तो हमने क्या किया कि जो कंटेंट है उसको पहले कर दिया, कि मान लीजिए कंटेंट हमारा किसी चीज़ पर है, किसी टॉपिक पर, ऋग्वेद के किसी सूक्त पर है, तो सूक्त क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें एक्साइटिंग है, उसको पहली दूसरी लाइन में रखते हैं, तीसरी लाइन में रखते हैं, चौथी लाइन में रखते हैं। तो जब वो हम रखते हैं और उसके बाद फिर उससे रिलेट करके इंट्रो को कंप्लीट करके फिर बोलते हैं कि आपका स्वागत है हाइपरक्वेस्ट में, तो वो दैट वर्क्स। आप पहले ही अगर ये बोलोगे कि आपका स्वागत है, तो वो लोगों को लगता है अच्छा ये 1 मिनट तो मुझे सुनना है ये। तो जो आपके जो आर्डेंट, जो बहुत ज़्यादा फ़ैन है वो तो सुन लेंगे, जो नया जिसको आप रीच करना चाह रहे हो उसके उनकी अटेंशन नहीं है, और ये है। और अटेंशन नहीं हो पाएगी और आगे तो और कम होती जाएगी, क्योंकि आजकल एक बटन क्लिक पे आपके मनपसंद चीज़ है, अवेलेबल है। पहले हमें गाने सुनने के लिए चित्रहार का वेट करना था। मुझे लग रहा है आई वॉज द लास्ट जनरेशन जो ऐसे हमने किया है कि एक गाना सुनने के लिए पूरे हफ्ते हम रुके हैं, या एक मूवी देखने के लिए। आज तो कोई गाना, कोई मूवी सब फिंगर टिप पे है। हो सकता है आपने भी किया हो, हमने भी एक गाने डाउनलोड किए हैं 1 घंटे में, 16 kbps 14 kbps की स्पीड पे। तो वो आज ऐसा नहीं है। तो ये समझना पड़ता है। और ये सब, अब जैसे आपने बताया ना, इंटरनेट ब्लेसिंग भी है और कर्ज भी है। तो इंटरनेट को ब्लेसिंग इस ऐसे बनाई है कि ये सब चीज़ें सीखी मैंने इंटरनेट से हैं, कि किस तरह से। बहुत ज़्यादा तो ऐसे रिसर्च नहीं की, लेकिन इतना समझ में आता है कि हाँ ये प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। फिर उसको, अब इसके 3 पार्ट होते हैं कि चलो आपका हुक हो गया, फिर आप जो मेन चीज़ बता रहे हो, और लास्ट में लोग बोलते हैं CTA होना चाहिए ये। तो मेरा ऐसा रहता है कि जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले रख के फिर उसको क्लैरिफिकेशन देना, और लास्ट में एक CTA करना कि हाँ अगर आपको पसंद आया तो करें। अब वो यही अभी है। और बीच बीच में आपका कंटेंट कितना भी ग्रो करे, लेकिन बीच बीच में आपको उस पर बैठ के सोचना चाहिए कि
और क्या नया कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी कंटेंट क्रिएशन। अभी इससे कब निकल पाऊंगा मैं ये तो नहीं पता, लेकिन यही करते हैं हम। तो सर अब बात करते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी की, जिससे रिलेटेड थोड़ा आपका कंटेंट भी होता है। तो अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एंशियंट टाइम पे थोड़ा सा ये डिफाइंड होता था कि जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे जन्म ले रहा हूँ, तो मेरा एक ग्रह होता था, ग्रह दशा जिसको बोलते थे, उसमें हमें कि तुम इस ग्रह दशा में जन्म लिए हो, तुम्हारा शनि ग्रह है या तुम्हारा शुक्र ग्रह है, उसको करके हम डिफाइन करते थे। एंड उसके बाद उस ग्रह से हमारी पूरी जर्नी, लाइफ की जर्नी को प्रिडिक्ट किया जाता था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ ये होगा, ये आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आप इस सक्सेस तक रीच कर सकते हो बाय दिस एज। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हमारा रोड मैप डिफाइन हो जाता था थ्रू दिस एस्ट्रोलॉजी। बट आजकल का जो यूथ है, या कहें आज के जो लोग हैं मॉडर्न एरा में, दे मोर बिलीव ऑन फ्री विल ऑफ मेकिंग देयर ओन चॉइसेस रेदर देन बिलीविंग ऑन दीज थिंग्स। तो आपके अकॉर्डिंग आपका इस पे क्या व्यू है कि लोगों को फ्री विल फॉलो करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी फॉलो करना चाहिए, एंड अगर करना चाहिए तो इन दोनों के बीच का बैलेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात तो जो आप एस्ट्रोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म की बात कर रहे हैं, तो जैसे जो आपने पहले बात की कि आपके जन्म के पहले कुछ पोजीशंस थी प्लैनेट्स की, तो इट वाज अ गुड वे टू डिफाइन कि हाँ इस समय आपका जन्म हुआ, और बहुत यूनिक, वो एक तरह से समझ लीजिए एक प्रिंट है जो आपसे एसोसिएटेड है। तो बहुत यूनिकली आपका बर्थ डेट डिफाइन किया जाता था। आज मेरे बर्थ पे तो बहुत लोग पैदा हुए होंगे, सेम हॉस्पिटल में भी बहुत लोग पैदा हुए होंगे, तो वो कुछ यूनिक नहीं कर रहा है। लेकिन पहले क्या था कि डिफाइन किया जाता था, तो उससे आप यूनिक होते थे कि हाँ अगर 5 मिनट या 10 मिनट का भी डिफरेंस है, तो आपका जो कुंडली बनती है या जो भी बनता है, उससे आप डिफाइन हो जाते थे। एक यूनिक आपको वो मिल जाता था कि इस लग्न में या इस राशि में ये था। तो ये यहाँ तक बहुत अच्छा है कि डिफाइनिंग योर बर्थ डेज। लेकिन अब आप उससे ये बोलिए कि आपका विवाह अब होगा, आप अभी विदेश जाएंगे, तो इस पे मेरा कोई भरोसा नहीं है और मैं इसको कोई इंडोर्स नहीं करता हूँ, क्योंकि ये साइंटिफिकली बैकड है नहीं। अगर इतना होता तो हम हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेते, है ना। अभी आप देखिए तो बहुत सी चीज़ होती है, हम हर चीज़ प्रेडिक्ट करके चलते। एग्जैक्टली। तो तरीका अच्छा है और उसके पीछे की जो साइंस लगी वो बहुत अच्छी है कि हमें एटलीस्ट पता तो था कि ये प्लैनेट्स हैं। आज हम अपनी आंखों से भी शनि को ढंग से नहीं देख पाएंगे। कोई आता है, हमारा इसरो या फिर और भी जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं वो बताते हैं कि चलो इस दिन इस समय आपको शनि आकाश में दिखेंगे। ऋषि उस समय देख रहे थे शनि और जो शुक्र ग्रह हैं, और उनके बेसिस पे आपका बर्थ चार्ट बना रहे हैं। तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन वो बर्थ चार्ट आप ऐसे होंगे, तो इसमें बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर मान लीजिए एक समय पे 2 व्यक्ति पैदा होते हैं एक ही बेड पे या बगल बगल, तो कुछ डिफरेंस नहीं उनकी लग्न चार्ट और इसमें, तो वो कैसे फिर अलग अलग लाइफ में ग्रो करते हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशन हो गया। मैं इसलिए ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं। जो इस सब्जेक्ट्स के माहिर लोग हैं उनको लगता है कि मैं इस सब्जेक्ट पे क्यों बोल रहा हूँ जब मैंने इसकी स्टडी नहीं की है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो इस पर रिसर्च पेपर्स क्यों नहीं है, कि कैसे शनि आपको बता देगा कि आप इतने साल परेशान रहेंगे। हाँ, इंटरप्रिटेशंस का कोई बैकअप है नहीं। हाँ ये है कि मैं जब पैदा हुआ था, इनफैक्ट जब हमारी शादी हुई थी, विवाह हुआ था मेरा, तो उसका भी चार्ट है मेरे पास। तो वो अच्छा है ना कि उस समय ये था, मतलब एक यूनिक चार्ट है मेरे पास कि उस समय प्लैनेट्स ऐसे थे या स्टार्स ऐसे थे। तो ये बहुत अच्छा तरीका था। किसी भी, अभी आप देखिए श्री राम जी के बारे में पढ़िए या किसी, तो उनका जो चार्ट है उनको बताता है, उनको जोड़ता है उस यूनिक टाइम लाइन से, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मिलियंस और बिलियन सालों में प्लैनेट्स उस तरह से अलाइन होंगे फिर से। जैसे अगर मेरे समय के जो प्लैनेट्स अलाइन हो गए, उनको फिर से उसी सिचुएशन में आने के लिए बहुत समय लगेगा। इसलिए एक ह्यूमन की लाइफ जो है वो 100 साल की है, 200 भी नहीं, 100 साल की एट मैक्स। तो एक समय में ख़त्म हो गया, चला गया, तो अब वो जो फिर सेम उसमें आएगा तो बहुत देर में आएगा। तो एक यूनिक प्रिंट आपको मिल जा रहा है आपके बर्थ का। लेकिन उससे ये चीज़ कहना कि प्रेडिक्शन करना, ये मतलब मेरी समझ के बाहर है। इसके जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे आप उनसे बात करिए, मैं इसमें भरोसा नहीं करता हूँ। ये तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, आपने फ्री विल का पूछा। आज फ्री विल जैसा कुछ नहीं रह गया है, इसलिए
क्योंकि अभी एक एग्जांपल हम लेते हैं, केविन फाउंडर हैं इंस्टाग्राम के। तो जब उन्होंने इंस्टाग्राम बनाया होगा, जब 2000-3000 लोग रहे होंगे उस समय, तो हैंडल करना बहुत ईजी है 10,000 लोगों को, 50,000 लोगों को। और उस समय जो केविन रहे होंगे, अगर उस समय वो कोई अकाउंट बनाते, उसको पॉपुलर भी वो कर लेते सेम एल्गोरिदम से। लेकिन आज क्या वो एक अकाउंट बना के पॉपुलैरिटी ला सकते हैं बिना एल्गोरिदम को छेड़े? जब 1.5 बिलियन लोग हैं इंस्टाग्राम पे, वो भी नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम जितना कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना, फ्री विल उतनी घटती जाती है। आज हम 8 बिलियन लोग हैं। आज आप यहाँ बैठे हो, मैं बैठा हूँ, इसके पीछे हज़ारों रीजंस होंगे। मैंने लाइफ में कुछ किया है, चैनल बनाया है, आपको लगा कि हाँ ठीक है ये अच्छा बताते हैं, चलो इनसे बात करेंगे। आप इससे जुड़े हैं, हो सकता है आपके कॉलेजेस में बहुत लोग होते हैं, बहुत सी सिचुएशन है जो आपको यहाँ पे लाई है। तो फ्री विल जैसा आप मतलब सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ, जब भगवान ने बनाया होगा, जब हम शुरू में जीव बन रहे होंगे, तो हो सकता है उनके हाथ में रहा हो। मुझे लग रहा है ईश्वर के हाथ में भी अब इतना कंट्रोल नहीं है इस प्रकृति का, क्योंकि फ्री विल जैसा अब नहीं है। अब आप कुछ भी करोगे ना, तो उसके पीछे 100 रीजंस रहेंगे और उसका इफेक्ट 100 लोगों पे रहेगा। तो वो डिपेंडेंस है, तो इसीलिए वो एक स्पेस है अभी भी आपके पास कि हाँ कुछ कोइंसिडेंसेस हो सकते हैं, बट फ्री विल ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अपनी तरफ से आप सोच सकते हो कि मैं ये करूँगा, लेकिन वो भी 50 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये। तो सर, आपके अकॉर्डिंग कि हम जो भी स्टेप्स लाइफ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी से इंटर रिलेटेड होता है। हाँ। हमने कुछ किया, उसका आउटकम कुछ आया, फिर उसका आगे का प्रोसेस करने के लिए हमने स्टेप लिया। तो आप कर्मा पे बिलीव करते हो कि जो हम कर्म करते हैं उसका हमें फल बिल्कुल मिलता है? तो उस पे आपके क्या थॉट्स हैं? कर्म पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो कुछ मेरे भी सिद्धांत हैं, तो जो सिद्धांत मैं उनको ही आप तक रख सकता हूँ। कर्म पे मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बिलीफ है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि जैसे अभी आत्मा और कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे जो डिबेट्स हैं मैं उनको कवर भी करता हूँ। कर्म को लेकर ये बोला जाए जैसे बर्थ के समय जो आपकी सिचुएशन, क्योंकि सब अगर जैसे हम बोलते हैं कि ईश्वर एक है और न्यायाधीश है, सबके साथ अन्याय नहीं करता, बट वी टेक बर्थ और फिर वो अलग अलग सिचुएशंस रहती हैं हमारे सामने, तो वो तो नहीं दिखता है कि न्याय का है। अगर ईश्वर न्याय से कर रहा है तो क्यों अलग अलग सिचुएशंस हैं? मैं ये मान सकता हूँ कि जो सुखी दिख रहा हो सकता है वो सुखी ना हो बाहर से, बट वो कंफर्टेबल लाइफ में तो है। उसका माइंडसेट कैसा भी हो कि हाँ मैं सुखी नहीं हूँ, वो बहुत लैम्बोर्गिनी में भी बैठ के उसको लग रहा हो, लेकिन फिर भी ही इज़ प्रिविलेज्ड। और जो एक बच्ची है जो मान लिया अपंग पैदा हुई है, तो वो तो पूरी ज़िंदगी उसको वैसे ही रहना है। साइंस उसको बिल्कुल बता देगा कि तुम्हारे माँ बाप के डीएनए में ये प्रॉब्लम हो गई या फिर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्या इसका सोल्यूशन तो नहीं ना। उसको तो झेलना है वो 60 ईयर्स 70 ईयर्स जब तक वो जिंदा है। तो कुछ तो है जो डिसाइड कर रहा है। ठीक है, साइंस हमें ये बता रहा है कि प्रॉब्लम हुई है, आपके बर्थ में प्रॉब्लम हुई है या आपका ये डिसीज़ है, बट जो उसको जी रही है वो क्यों हुआ, ये क्यों का आंसर जो है, ये कुछ तो है जो डिसाइड कर रहा है। और उस तरह से जब हम कर्म को देखते हैं, और बहुत से लोग ये भी प्रश्न इसमें करते हैं कि आप कर्म की बात करते हो तो जो कोई गलत किया, मान लीजिए कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, तो क्यों नहीं अगले दिन मेरा मर्डर हो जा रहा है, कर्मा बैक क्यों नहीं आ रहा है, क्यों एक कोर्ट की ज़रूरत है, क्यों भारत के संविधान की ज़रूरत है? तो इस पर भी बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं और मैं उस पर डीप स्टडी हमेशा करते रहता हूँ। तो मैंने योग दर्शन पढ़ा जब, तो महर्षि पतंजलि जी भी अपने मुझे लग रहा है दूसरे पाद साधना पाद में बताते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, आपकी आयु, आपकी योनि और आपका स्थान। जब वो अलाइन होते हैं उस कर्म के फल को भोगने के लिए, तभी आप भोग सकते हैं। मैंने मर्डर कर दिया तो पहला तो ये मेरा क्राइम नहीं है, पीछे भी किए हैं ना। मैं कल मर जाऊंगा, उसको कौन भोगेगा? तो जो पीछे मैंने किया है वो भी तो मुझे भोगना है। तो इसका ये सोल्यूशन नहीं कि मैंने मर्डर कर दिया और मेरा मर्डर हो जाए, तब तो मैंने एक ही कर्म का फल लिया। पीछे का कैसे करूँगा? और इसमें भी ये डिफाइंड है कि आपने अगर मान लो कुछ आपको भोगना है और आपको कुछ दूसरी योनि में भोगना है, तो आप उसी योनि में जाके भोगेंगे। वो दुख आप शेर के रूप में ही उठा सकते हैं, मनुष्य के रूप में नहीं। तो ये फिलॉसफी से डिसाइड होता है कि जब आपके जो कर्म संचय हो गए हैं आपके सेल्फ में, वो जब उसके जो कुछ कर्म के भोग अगर वो शेर या घड़ियाल की उसमें हैं, तो आप उसी में जाके भोगेंगे। तो इस तरह के बहुत बहुत थॉट्स इस पे दार्शनिकों ने दिया है और बहुत से क्वेश्चंस के आपके आंसर मिलेंगे दर्शनों में। अब चूंकि इसका कोई बैकअप नहीं है साइंटिफिक, अभी आप जैसे मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, तो मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मान रहा हूँ और कर्म में मान रहा हूँ,
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन कर्म का एक ये तो मिलता है कि भाई इतने वेरिएशंस क्यों हैं जीवन में, और इसलिए कर्म के जो, और फिर कर्म के ही सिद्धांत पे आत्मा का सिद्धांत है, और ये बहुत वैदिक सिद्धांत है। तो इसलिए फिर इस सिद्धांत पर मैं लगातार काम करता हूँ और इस पर मैं थोड़ा सा बिलीफ रखता हूँ। इट्स ग्रेट टू नो कि आपके क्या बिलीव्स हैं एंड क्या थॉट्स हैं। अब थोड़ा इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। तो इंडिया की हिस्ट्री शुरू से ही बहुत रिच रही है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, इंडियन मैथमेटिक्स की, तो इंडियन मैथमेटिक्स की भी अपनी बहुत रिच हिस्ट्री है, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यभट्टा टू ब्रह्मगुप्त, राइट। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो एंशियंट फिलोसफीज़ हैं या प्रैक्टिसेस हैं जो आज के टाइम पे भी, मॉडर्न एरा में भी रेलेवेंट हैं इनकम विथ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स? जैसे कि अभी आप रिच हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। अब जैसे आपने मैथमेटिक्स की बात की, आर्यभट्ट की, ब्रह्मगुप्त जी की, वराहमिहिर जी की, या फिर आचार्य पिंगल जी हो गए, या फिर अभी केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के जो हमारे गुरु आचार्य माधव आदि हैं। तो ये मैथमेटिक्स की बात है। तो जब आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो आज जैसा है वैसा ही है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है ना। आज से 200 साल पहले जो थॉट्स आए होंगे या न्यूटन ने जो किया होगा उसको फिर आइंस्टाइन ने रिफ्यूट कर दिया कुछ थेरीज को, फिर आगे उस पर बिल्ड किया। तो ऐसे ही वो भी चलता है। वो ऐसा नहीं है कि आर्यभट्ट जी ने जो कर दिया वो अब उसी पे सब चलेगा। उस पर ब्रह्मगुप्त जी ने काम किया, फिर उसके आगे आने वाले जो हमारे आचार्य माधव हुए, तो इन लोगों ने काम किया। तो साइंस और मैथमेटिक्स आप देखेंगे तो वो इवॉल्व ही होगा हमेशा, न्यू टेक्निक्स आएंगी। आपने बताया ये सारे वेद जो है इंटरप्रिटेशंस के थ्रू इवॉल्व होते जा रहे हैं, तो इसके थ्रू एज फार एज मैंने आपके कंटेंट थोड़ा देखा है, आपने कहीं ना कहीं ये भी कन्वे किया है कि ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी हो रहा है ना, उसमें कुछ गलत चीजें ऐड हो रही है, आधा ज्ञान जो है वही आधा घड़ा छलकता है ना। तो कुछ ऐसी चीजें जो पहले उस हिसाब से नहीं बताई गई थी, उन्हें मैनिपुलेट करके लिखना कुछ और से कुछ और वो बन गया है, जो आज के टाइम में एज अ टैबू देखा जाता है। और दूसरा, कुछ ऐसी अचीवमेंट्स जो इंडिया से, एंशियंट कल्चर से ले ली गई है, जो उनका एक्चुअली ओरिजिनलिटी थी एंड किसी और के पास उसका आज वो है। जैसे न्यूटन्स के ऊपर भी हम कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर अभी रिसेंटली आई है एकदम कि ये नहीं एक्सेप्टेबल है कि न्यूटन ने अपनी थ्योरीज अपने आप से निकाली थी, राइट। तो इन दो चीज़ों पे आपका क्या कहना है कि ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है इन्हीं इंटरप्रिटेशंस का, सेकेंडली जो ओरिजिनल उनका वो है आइडेंटिटी है, ये छीना जा रहा है? तो इसमें ये है कि जैसे जो वेद हैं तो वेद, तो पहली बात, वेद सुनने से ऐसा लगता है कि वो पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, बट वो ग्रंथ नहीं है। वेद बहुत बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं। वो एक्चुअली वेद आप करेंगे ना तो वेदों में उपनिषद भी है, वेदों में संहिता भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी, आरण्यक भी हैं। तो वेद ऐसा नहीं कि एक पुस्तक है। और फिर वेदों में भी 4 भाग हैं। अगर आप वेद ही पढ़ें पूरा जीवन निकल जाएगा वेद में। उसके बाद वेदों को कैसे सही लाना है, क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था कि लिख के रखते थे। हमारी जो राइटिंग टेक्निक्स हैं या जो पेपर है या जो भी चीज़ें हम लिखना शुरू किए हैं वो अभी रिसेंट है। वेदों को हमेशा से बोल बोल के उनके उच्चारण को सही करके बताया गया है। तो वेदांग का जन्म हुआ कि वेदांग में 6 चीज़ें हैं। वो 6 चीज़ें मतलब एक तरह से कहते हैं ना, हमारी जो चैट्स होती हैं इनक्रिप्टेड रहती हैं व्हाट्सएप पे, तो वो जो है ना वो इनक्रिप्शंस थे कि वेद को कुछ मिलावट की ना जा सके। तो वेदों में तो मिलावट नहीं मिलेगी आपको, लेकिन वेदों की जो भाष्य होता है, जो कमेंट्री होती है, जो उनका एक्सप्लेनेशन होता है, उसी में मिलावट होती है। भगवत गीता में मिलावट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो भगवत गीता के भाष्य होते हैं अलग अलग तरह के, तो फिर उसको जैसा व्यक्ति पढ़ता है वो उसको मैनेजमेंट इंटरप्रेट करता है, उसमें आपको मिल सकता है। तो इतना तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि जो ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ आगे जाते जाते, अगर जैसे होता है ना कि एक भी स्वर या व्यंजन हमने इधर उधर किया तो एक जनरेशन ने तो किया, दूसरी जनरेशन क्या करेगी, और फिर 10 जनरेशन बाद पूरा का पूरा मंत्र ही बदल जाएगा। तो उसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जो इंटरप्रिटेशन है वो जो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी नॉलेज है, उसको संस्कृत कितनी आती है, उसको वैदिक संस्कृत कितनी आती है, और वो उन चीज़ों को कितनी गहराई पे समझ पा रहा है और कनेक्ट कर पा रहा है वर्ड से। तो इसलिए फिर आप देखिए 6 दर्शन निकले, और भी दर्शन हैं। उसके बाद कमेंट्रीज़ अलग अलग हैं, और आज भी आप देखो तो कुछ कमेंट्रीज़ में ज़मीन आसमान का भी अंतर दिखेगा। किसी में पशु बलि को बताया गया है सही है, किसी में बोलेंगे नहीं पशु बलि नहीं है, वो इसका इंटरप्रिटेशन ये है। तो अब जिसको था कि चलो ठीक है हम मांसाहार करेंगे,
तो वो पशु बलि को या सही अपने सही करते हैं। willingness हाँ, में अपनी निकाले विलिंगनेस से गए। चीज़ें या होती चली गई हैं, ये चीज़ है। और जो आप बात कर रही हैं कि बहुत सी चीज़ें ली गई हैं, तो उसमें जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं, ऐसे तो पूरा वर्ल्ड है, हम ही ऐसा नहीं कि पूरा केवल इंडिया ही है, पूरा वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करता है नॉलेज सिस्टम में। तो इंडिया ने का भी कंट्रीब्यूशन है, तो हम दोनों चीज़ नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं बोल सकते कि 100% इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है और ये भी नहीं बोल सकते कि इंडिया ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। जो आज एक हीन भावना रहती है कि वेस्ट ने ही सब कुछ किया। मैंने बहुत ढेर सारी वीडियोज़ बनाई हैं, बहुत ढेर सारे साइंटिस्ट की बात की है, जो इंडिया से निकली हैं, लोगों को बिलीव नहीं होता है। अपने नहीं बिलीव कर रहे हैं, यूरोपियंस करने लगे हैं। अभी जैसे बहुत ढेर सारी सीरीज़ मैंने बताई, जैसे न्यूटन माधव सीरीज़ आ गई, माधव लिबनिज सीरीज़ आ गई, तो माधव जी को वो अब जो देना है वो यूरोप ने देना शुरू कर दिया है, वो विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे कि अच्छा हम ये कर सकते हैं। तो एक हीन भावना हमारे अंदर है। हाँ, ये भी है कि हम सब कुछ तो नहीं कर सकते और सब कुछ हम किए भी नहीं है, तो जहाँ क्रेडिट जिसको है बस वहाँ जाना चाहिए। मेरा ये रहता है कि अगर है इंडियंस का क्रेडिट तो इंडियंस को जाना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया कि ये डिपेंड करता है कि कैसे हम चीज़ों को इंटरप्रिटेट करते हैं, या फिर आपने मॉडिफिकेशंस या वेरिएशंस का बताया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, या लेगेसी हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन जब दूसरी जनरेशन को कुछ लेगेसी में देती है और उसको कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं या कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं कि कुछ प्रैक्टिसेस पुराने टाइम पे होती थी, बट उनके होने के पीछे कुछ और कारण होता था। जब उसको एज ए लेगेसी कैरी फॉरवर्ड किया गया आगे के टाइम पे, तो उसका रेलेवेंस उस जनरेशन से नहीं रह गया। नहीं रह गया। एंड इसी कारण से लोगों ने उसको एज अ अंधविश्वास कहना शुरू कर दिया। एंड इसी चीज को उन्होंने फिर एंशियंट टाइम की जो एक्चुअल में अच्छी फाइंडिंग्स थी उससे रिलेट करके एंड दोनों को मिक्स करके एंड एशियंट को और अंधविश्वास को एक में कर दिया। तो इस पे आपको क्या लगता है कि ये एक परसेप्शन है लोगों का, या फिर तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों का अंधविश्वास है और जो एक्चुअल में फाइंडिंग्स है, अगर इसको किसी को पता करना हो कि ये कैसे सही है, तो क्या सोर्सेस से कैसे पता किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको रिचुअल्स जो होते हैं किसी भी धर्म के, ऐसा नहीं कि केवल हिंदू सनातन धर्म के, जो भी रिचुअल्स हैं, पहले तो आप ये समझिए कि कोई भी जो धर्म है, धर्म तो नहीं बोलेंगे, रिलीजन बोलेंगे, तो रिलीजन में तीन पार्ट होते हैं मोस्टली। एक तो उनकी फिलॉसफी कि वो क्या मानते हैं, ईश्वर को कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को कैसे देखते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, और इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, जो फिलोसफिकल थॉट है जो किया है। दूसरा होता है कि उनका कल्चर कैसा है, रिचुअल्स कैसे हैं। और तीसरी होती है उनकी जो स्टोरीज़ हैं, जो जिसके माध्यम से वो अपनी कॉम्प्लेक्स फिलॉसफीज़ को समझाते हैं। किसी में भी, आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वो भी होगा, इस्लाम में जाएंगे वो भी होगा, हिंदुज़म में आएंगे वो भी होगा। अब रिचुअल्स हैं, वो रिचुअल्स आते ही दो वजह से हैं, या तो फिलॉसफी में वैसा है, या तो आपकी जो सिचुएशन है जियोग्राफिकल, कि जैसे आप साउथ में देखेंगे लोग लुंगी पहन रहे हैं, वहाँ भी तो हिंदू हैं। और नॉर्थ में आप आएंगे तो यहाँ के हिंदू कुछ और पहन रहे होंगे। तो वो जो रिचुअल पार्ट है कि यहाँ पे पूजा दूसरी तरह है, बंगाल में पूजा दूसरी तरह हो रही है, कश्मीर में पूजा दूसरी तरह हो रही है। तो जो रिचुअल होता है ना, ये जियोग्राफिकली चेंज होता है, वेशभूषा चेंज होती है, आपकी कथा कहानियाँ भी चेंज हो सकती हैं उस जगह के हिसाब से, लेकिन जो कोर फिलोसफिकल थॉट है वो नहीं चेंज होता। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का भी जो हिंदू है, वो अगर वेदों में विश्वास कर रहा है, कार्मिक सिद्धांत में, कर्मों के सिद्धांत में विश्वास कर रहा है, आत्मा में विश्वास कर रहा है, तो साउथ का भी हिंदू करेगा उसमें। तो जो फिलॉसफिकल थॉट है वो नहीं चेंज होना चाहिए। बाकी आपका जो रिचुअल है या फिर जो आपका कल्चर है वो चेंज होता रहता है। वो उस आप देखेंगे तो इस्लाम में भी अलग जगह पे कुछ और पहनते हैं, अलग जगह पे कुछ और पहनते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी हो सकता है कि यूरोप में कुछ और चल रहा है, लेकिन अफ्रीका में भी क्रिश्चियनिटी है तो वहाँ पे भी कुछ और पहन रहे हैं, तो वो अलग है। फिलोसफिकल थॉट सेम होने चाहिए। अब आपको देखना है जो भी आपको अंधविश्वास लग रहा है वो फिलोसफिकल थॉट से आया है कि नहीं आया है ना, वो उन कथाओं से आया है कि नहीं आया है। अगर उस फिलोसफिकल थॉट उसमें है नहीं उस धर्म का, तो वो अंधविश्वास है। ये लिटमस टेस्ट है। आपको कुछ भी लगे कि ये अंधविश्वास है, तो सबसे पहले आप उसकी स्टडी करिए कि क्यों है, क्या है। अगर वो किसी ना किसी फिलोसफिकल थॉट से, मौलिक विचार से जाके जुड़ता है, तो फिर वो प्रैक्टिस होती आई है। और अगर नहीं जुड़ता है तो इसका मतलब ये है कि किसी ने अपने फ़ायदे के लिए वो शुरू किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ सुपरस्टिशन है कि नहीं है। तो एज पर हम देखें एंशंट इंडिया में, हम एंशंट इंडिया जो पास्ट स्कूल्स थे वी कैन रिलेटेड टू द गुरुकुल्स।
तो गुरुकुल्स में जो एंशियंट टीचिंग्स होती थी एक्चुअली में पहले यंगस्टर्स को कैसे पढ़ाया जाता था? बहुत ही कम एज में उन्हें भेज दिया जाता था गुरुकुल में, मोर ऑफ अ हॉस्टल अभी का अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला जाए तो अभी के स्टूडेंट्स में एंड तब के स्टूडेंट्स में क्या फ़र्क है? जो अभी के स्टूडेंट्स में हमारी इंटेलिजेंस, हमारा रिटेनिंग पावर किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, एंड चाह कर भी हम उन स्टूडेंट्स जैसा रिटेंशन नहीं रख पा रहे हैं। तो व्हाट वर सम ऑफ द मेन पॉइंटर्स जो वो फॉलो करते थे, उन्हें करवाया जाता था एंड हम शायद अभी के टाइम में अडॉप्ट कर सकते हैं, हमारे अंदर वो चीज़ शायद ना आ पाए? दोनों चीज़ें हो सकती है, राइट? दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि गुरुकुल क्या था। पहले देखिए, गुरुकुल में जो दोनों एजुकेशन सिस्टम है, जो आज हम जिस एजुकेशन सिस्टम से इतने अच्छे बनते हैं और 30s और 40s में जाके उसी को फिर गाली देते हैं कि ये कैसा एजुकेशन सिस्टम है। तो प्रॉब्लम क्या है कि पहले केवल जो स्टूडेंट थे वो अभी क्या है, हमारी रिलेशनशिप हमारे स्कूल और हमारे टीचर से केवल एकेडमिक है, उससे ज़्यादा नहीं है। बट गुरुकुल क्या था? गुरुकुल एक रेजिडेंशियल प्लेस था, वहाँ बच्चा रह रहा है ना। और गुरुकुल में आचार्य होते थे। आचार्य का अर्थ होता है जिसके आचरणों को हम फॉलो कर सकें। आज आप किसी स्कूल या कॉलेज में जाएंगे, कितने ही टीचर मिलेंगे जो आप बोलेंगे भाई मैं इनकी तरह बनूंगा, है ना। तो एक जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो बच्चा एजुकेशन तो चाहता है, इन्फॉर्मेशन चाहता है। आज इन्फॉर्मेशन में हम बीट कर देंगे गुरुकुल के बच्चों को, क्योंकि आज हम इन्फॉर्मेशन में बहुत आगे हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत हैं। हमारे पास गूगल है, हमारे पास कलीग्स हैं, हमारे पास टीचर्स हैं, AI आ गया है, चैट GPT आ गया है। इन्फॉर्मेशन में तो हम भर लेंगे। लेकिन जो शुरू में ही समझना कि लाइफ क्या है, लाइफ का गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, वो हम 30s और 40s में सीखते हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारे पेरेंट्स नहीं कंसर्न्ड हैं, हमारे टीचर्स नहीं कंसर्न्ड है कि आप लाइफ में कैसे हो, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक लाइफ। प्रिंसिपल्स नहीं, आपकी मोरालिटी क्या है। आपने एक जगह सुना कि पैसे बनाने हैं, अब आप लग गए। अब पैसे बनाने ऑब्स्टेकल्स आए, अपने उनको पार किया, आपको एक किक मिल गई कि पैसे बनाने हैं। आपने इतना पैसा बनाया कि आप बहुत अच्छे से जी सकते हो ये लाइफ सफिशिएंट। तब आप क्या करोगे? अब आप अपने बच्चों के लिए बनाने लगोगे। फिर जब उनके लिए बनाने लगे, वो भी हो गए सेटल, तो क्या करोगे? 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, कहाँ रुकेंगे? तो ये मोरालिटी कौन सिखाएगा? ये तो मैंने केवल पैसों की बात की है। ऐसी सब तो ये क्या होता है, गुरुकुल में जब बच्चा आचार्य के साथ रहता है तो उसको लाइफ का एक्चुअल चीज़ पता चलती है कि व्हाट इज़ लाइफ। तो आज क्या है, आज का बच्चा स्कूल कॉलेज टीचर से उतना ही जुड़ा है जितना उसको एकेडमिकली हेल्प मिल पाए और वो कुछ लाइफ में पैसा कमाने लायक हो जाए। उसके अलावा उसका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। बट बैक इन गुरुकुल, जब आप गुरुकुल के अंदर जाते थे तो आपका आचार्य जो है जैसा आचरण कर रहे हैं आप वैसा सीख रहे हैं। क्योंकि आज आप पेरेंट्स अगर कुछ भी कहेंगे बच्चा नहीं मानेगा, पेरेंट्स को करके दिखाना पड़ेगा। जब पेरेंट्स ही मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चा कैसे नहीं चलाएगा? आप कितना भी लाख उसको बोलो बेटा नहीं चलाना है। तो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है आज का जो एजुकेशन सिस्टम है। आज का इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है। टीचर आएंगे, बताएंगे आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो, वो रिफ्लेक्ट होगा आपकी मार्कशीट में। अब इससे मैं ये समझाऊं कि पहले इतना फ्लेक्सिबल सिस्टम था कि कोई बच्चा है अगर वो तेज है, जीनियस है, इंटेलिजेंट है, तो उसको वेट नहीं करना। जैसे आप दोनों बहुत तेज हैं लेकिन आपने 7th पास किया, 8th पास किया, 9th पास किया, हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन दिए, इंटरमीडिएट किया, तब जाके आप ग्रेजुएशन पहुँचे। तो आप कितने भी तेज रहे हों, आप सीधे श्री राम कॉलेज तो नहीं आ सकते थे। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले बच्चा तेज, उनको पता है गुरु को, तो सीधे उसको आगे भेजते थे। जो बच्चा कमज़ोर है उस पर काम होता था और ये इंश्योर किया जाता था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर या फिर जो भी उनकी साइकिल रही हो उसमें ये आगे बढ़ पाए। तो वहाँ पे ऐसे बैरियर्स नहीं थे कि आप कितने भी तेज हो, ठीक है आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आपको इतने समय के लिए रोका जाएगा। इसीलिए आप देखिए बहुत ढेर सारे जो हमारे अचीवर्स रहे हैं पास्ट में, वो 16 साल, 17 साल, 15 साल, 18 साल, 14 साल की एज में, आदि शंकराचार्य 13 साल की एज में। क्यों? क्योंकि आप तेज हो तो आपको आगे जाने दिया जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गुरुकुल से, और बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो नहीं भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ यूटोपिया ही है। लेकिन अगर आप गुरुकुल सिस्टम को देखते हैं तो आपको पहले ये समझना होगा कि जो नया बच्चा है वो केवल एजुकेशन या इन्फॉर्मेशन के लिए ही नहीं रेडी है, वो लाइफ के लिए भी रेडी उसको करना है। और इन्फॉर्मेशन आज इतनी जगह से मिल रही है कि कौन सा ऑथेंटिक सोर्स है, कहाँ से हम आज ये मूवी देखेंगे हमें ये बनने का मन करेगा, कल हम वो मूवी देखेंगे हमें कोई बताने लगेगा हमारी लाइफ में सारा दिन कि हमने 3-4 रील फॉलो कर ली पैसा बनाने की तो हम पैसे बनाने में घुस जाएंगे, हमने 3-4 रील फॉलो कर ली बॉडी बनाने की तो हम बॉडी बनाने में घुस जाएंगे। तो हम आज एकदम इन्फॉर्मेशन से भरे पड़े, हमें लाइफ
हमें क्या पसंद है वो हम एक्सप्लोर कम कर रहे हैं, रेदर देन फॉलोइंग अदर पीपल कि वो क्या कर रहे हैं। आज के टाइम में आपको क्या लगता है वो जो आचार्य वाला पार्ट जो हमारी लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ में मिस हो रहा है, क्या कुछ ऐसा है जो उसे रिप्लेस कर सकता है? उसे रिप्लेस कर सकता है वही कि हमें इस सिस्टम को फिर से हम्म रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडर्नाइज करें, क्योंकि आज आप देखिए हमारे ग्रंथ भी लाए गए हैं। आज भगवत गीता 12वीं सेंचुरी में भी पढ़ी जाती थी, 8th सेंचुरी में भी, आज भी। लेकिन जो उससे हम आज कैसे उससे हम अच्छा कर सकते हैं, 12th सेंचुरी में कैसे करते थे। पहले जब युद्ध होता था बैक इन 2000-3000 साल पहले, कई ऐसे भी मिले हैं जब अभी ग्रीक्स आए थे तो वो बताते हैं कि भगवत गीता का पाठ होता था। तो भगवत गीता हर एरा में किस तरह से यूज़फुल है, किस तरह से आपको आगे बढ़ा सकती है। तो इस तरह से गुरुकुल भी आज के समय में है ना, अब ऐसा गुरुकुल हो जहाँ हम मॉडर्न एक्सपेरिमेंट ना करें तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि बिल्कुल। हमें तो आगे बढ़ना है, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी। तो इस तरह का कोई एक कॉलेज सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे बच्चे रुके हैं, जहाँ के आचार्य का फोकस केवल एजुकेशन ही ना हो, एक मतलब रोबोट बनाना या फिर एक आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय जनरेट करना ही ना हो, रेदर देन कि एक उनको एक अच्छा एक अच्छा इंसान, बनाना मतलब या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बतानी समझानी। और आज हम केस स्टडीज़ तो बहुत करते हैं, तो ऐसी केस स्टडीज़ भी उठाई जाएं जहाँ फेलियर्स को भी, अभी सक्सेसफुल केस स्टडीज़ तो बहुत पढ़ते हैं, फेलियर्स को भी समझाया जाए कि कैसे हैंडल करना है और आपकी मोरल वैल्यू क्या है सोसाइटी की तरफ, है ना, वो सब भी हमें आना चाहिए। आज हम बहुत चीज़ में बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन हम जब चीप हरकत कर देंगे वो बहुत दिक्कत है। मतलब प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि आपको साफ रखना है, ये क्या मतलब, ये कैसे हम यूथ है कि हम अपनी स्ट्रीट नहीं साफ रख पा रहे हैं। बेसिक वैल्यूज़ नहीं हमारे अंदर। वो चीज़ आती हम है कहीं हमारी इनसे। घूमने जा रहे हैं, हम पैकेट्स फेंक रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का काम तो नहीं है ना कि आपको बताना कि आप साफ रखो, ये तो आपके अंदर इनग्रेन्ड होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कोई, सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है और हमें ये नहीं बताया गया है कि हमारी वैल्यू टुवर्ड्स एनिमल, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स सराउंडिंग्स हो गई, या हमारा जो वातावरण है उसके लिए क्या है, या और भी चीज़ें हैं, उसमें बहुत कुछ हम इस चीज़ में भी बिल्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स ग्रेट टू नो सर कि आपके इस पे क्या थॉट्स हैं। सो वी कैन से दैट कि गुरुकुल्स के जो वैल्यूज़ थे, जो एथिक्स थे, उनको हमें पिक करना चाहिए, एंड जो आज के इश्यूज़ हैं, जो मॉडर्न एरा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके देन वी कैन इम्प्लीमेंट दोज वैल्यूज़ एंड एथिक्स, राइट? या सो सर अब थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, तो आप उसको अगर डिफाइन करें हमारे लिए तो। मेरे लिए पहले तो ये समझना चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी कोई जादू नहीं है, और ना आप ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्रोसेस फॉलो कर लेंगे जिससे आपका कुछ खुल जाएगा और आप उड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे लिए तो नहीं है, अगर कोई करके दिखा सकता है तो मैं देखना चाहूँगा, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी संस्कृत में देखेंगे तो अध्यात्म बोला जाता है, और अध्यात्म का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे या फिर आप देखेंगे तो दो शब्दों से बना है, अधि और आत्मन से। अधि आत्मा, अधि का अर्थ होता है संस्कृत में अधिकरण से, मतलब जिसका अधिकार हो, यानी हम ये कह सकते हैं इस कमरे को अधिकरण बोलेंगे अगर हम इसके अंदर हैं, मतलब ये कमरा एक तरह से हमारे ऊपर अधिकार किया हुआ है। तो जब आप आध्यात्म कहते हैं तो आत्मा के अंदर जो है वो आध्यात्म है, यानी सेल्फ के अंदर। तो जब आप आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो जब आप आत्मा के अंदर जो नॉलेज है वो जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है। अब स्पिरिचुअलिटी कैसे रियल लाइफ में होती है, वो सारे काम, जब ऐसे काम जो आप करते हैं जिसमें आप रियल वर्ल्ड से अलग हो जाएं, एक्चुअल पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे काम जब आप अपने आप को भूल जाएं, आप अपनी सिचुएशंस को भूल जाएं, आप भूख भूल जाएं, अपने दर्द भूल जाएं, अपने सुख भूल जाएं, और सिर्फ उस काम में ऐसे खोए रहें, वो स्पिरिचुअलिटी है। अब जैसे जब विराट कोहली खेल रहे हैं तो क्राउड वो भूल गए, बॉलर कौन है भूल गए, उनको पता है कि बस मेरा काम है खेलना, और जो बॉल आएगी मैं खेलूँगा, मैं कौन हूँ, क्राउड क्या है, प्रेशर क्या है, स्कोर बोर्ड क्या है, डजेंट मैटर, वो है स्पिरिचुअलिटी। या मैं जब कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कोई थॉट में खोया हुआ हूँ या कुछ सोच रहा हूँ तो मैं अपनी एग्जिस्टेंस को भूल गया। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, आप आत्मन में जा रहे हो, सेल्फ में जा रहे हो, यानी आप अपनी रियल वर्ल्ड या फिजिकल एस्पेक्ट से दूर जा रहे हो। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी यही है कि हर एक ऐसा काम जो आपको इस रियल वर्ल्ड से अलग करता है, क्योंकि दो एस्पेक्ट हैं आपके, आप या तो इस पूरी बॉडी से
चीज़ें जीते हो, या फिर इस पूरी बॉडी के अलावा एक सेल्फ है आपका जो आपको बाहर से भी देखता है कि हाँ, मैं अभी जैसे मेरा एक सेल्फ है जो बाहर खड़ा है, देख रहा है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। वो जो सेल्फ है, वो सेल्फ जब जीता है तो वो स्पिरिचुअलिटी है। आप थोड़ा सा बढ़ते हैं यूथ की तरफ। तो आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी या नोटिस करी होगी कि आजकल के टाइम पे जो पहले के कंपैरिजन में मोरल वैल्यूज़ होती थी जो हमें अपने एंशियंट टाइम पे मिलती थी, जैसे हमने अभी गुरुकुल की बात करी, जो गुरुकुल में हमें मोरल वैल्यूज़ मिलती थी, वो धीरे धीरे जैसे यूथ इवॉल्व होता गया ना, उन्होंने इस पे इतना बिलीव करना या हम कहें इतना फोकस करना ख़त्म कर दिया। लाइक अगर हम देखें तो हमें क्लास 8th तक एक सब्जेक्ट एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट तो पढ़ाया जाता है, मोरल वैल्यूज़ या मोरल साइंस, अलग अलग नेम से, बट उसमें हमें उस तरीके का, उस क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलता है जो गुरुकुल में मोरल लाइफ के बारे में सिखाया जाता था। बस वो हमें एक स्टोरीज के फॉर्म में होता है ना। तो आपका क्या थॉट है कि ये मोरल वैल्यूज़ को कैसे यूथ अपने लाइफ में इंकलकेट कर सकता है और कैसे इसको डेवलप करना चाहिए कि मोरल वैल्यूज़ पे भी यूथ थोड़ा फोकस करे? अनदर थिंग, या तो जैसे अभी के टाइम में वो कुछ मॉरल स्टोरीज एंड ऑल लेके हमें बताया जाता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू बी डन, है ना। तो लास्ट थोड़ा एंशियंट टाइम में हिस्ट्री में अगर देखा जाए, वो कैसी स्टोरीज थी जिससे तब के छोटे बच्चों को, नॉट इवन टीनेजर्स एंड ऑल, हल्के छोटे बच्चों को ये समझाया जाता था कि एक्चुअली में मोरालिटी क्या होती है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें स्टोरीज़ के फॉर्म में तो बताया जा सकता है। इनफैक्ट आजकल के टाइम में तो इनफैक्ट मैंने खुद 8th क्लास में एंड 9th क्लास में रामायण और महाभारत सिलेबस में एज इन पढ़ी है। तो ठीक है, वो तो सिलेबस कंप्लीट करने के हिसाब से पढ़ लिया गया, बट वही चीज़ है, पहले के टाइम में से मोरालिटी कैसे सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई जाती थी। तो जैसे कि अभी हम लोग गुरुकुल के बारे में पढ़ रहे थे, मतलब मैं बता रहा था कि जैसे आचार्य का आचरण है, उससे बच्चे मोरालिटी सीख रहे थे। अभी आप देखते हैं मोरालिटी की आप बात कर रहे हैं, और आज के यूथ में आप देखिए तो इंस्टाग्राम पे किसी के कोई हैंडीकैप्ड है, उसका भी डार्क ह्यूमर चल रहा है। वो मोरालिटी, मतलब आप बस वो कूल लगने वाली बात रह गई है, वो मोरल वैल्यूज़ नहीं दिखती हैं हमें। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि हमें मोरालिटी एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि देखिए मोरालिटी डिपेंड करती है कि आप, मोरल वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी पे डिपेंड करती हैं। दूसरी सोसाइटी में जो मोरल वैल्यूज़ हैं, हो सकता है कि कहीं पे किसी स्पेसिफिक क्रिएचर को खाना मोरली सही हो, क्योंकि वहाँ पे वो उपलब्ध है और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, क्रॉप्स नहीं है, तो उसको खाते हैं। किसी दूसरी जगह पे उसी चीज़ को खाना मोरली गलत देखा जाता हो, कहीं हम 2-3 शादी कर सकते हैं, कहीं हम नहीं कर सकते। तो मोरल जो है ये सोसाइटी से बनता है। अब उसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना कितना कारगर है, उससे ज़्यादा कारगर जो मुझे लगता है कि जब हमारे टीचर्स और पेरेंट्स इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जस्ट बताना नहीं है, करके दिखाना है। वही जो मैंने बात की, एक्शन ओरिएंटेड। अगर आपके माता पिता वो चीज़ करते हैं कि जैसे जो भी चीज़ करते हैं बच्चा उसको ज़्यादा फॉलो करता है, क्योंकि मेरे पापा ने किया, मेरी मम्मी ने किया, मेरे टीचर्स ऐसा करते हैं, तो उनका एक्शन बच्चों के अराउंड ऐसा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे के अंदर ह्यूमिलिटी हो, आपका बच्चा काइंड हो, ऑनेस्ट हो, तो आप भी तो ऑनेस्ट हो। अगर आप अपनी घर की मेड से अच्छे से बात नहीं करते हो, तो आपका बच्चा भी नहीं करेगा। आप उसको कितना भी लेसन दे दो, आप उसको रामायण पढ़ा लो, चाहे महाभारत पढ़ा लीजिए, वो एज अ सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन उन सब्जेक्ट से जो चीज़ें आपको मिली हैं वो आपको बच्चे के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा, उस तरीके को उस बच्चे को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा देखता है नहीं यार मेरे पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, मेरे टीचर्स भी ऐसे करते हैं, तब वो मोरालिटी ज़्यादा अच्छे से डेवलप होती है। और वो तभी होता है जब बच्चा माँ बाप और टीचर्स के साथ ज़्यादा रहता है, या जिसके भी साथ रहता है, वो मोरल वैल्यूज़ उनको सिखाई जाती है। इसीलिए जो पहले का कल्चर था कि आचार्य के साथ रहना है, और आपको 6 साल की उम्र से 7 साल की उम्र से 12 तक 13 तक, जो 5-6 साल आपके जो सबसे ज़्यादा डेवलपिंग आप कह सकते हैं आपके हैं फेज़ है, उसमें आपको रहना ही है और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। माता पिता भी उस जिम्मेदारी से दूर हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि मुझसे अच्छा ये आचार्य ही गाइड कर पाएंगे। तो आज भी अगर मोरालिटी को देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी की जो मोरल वैल्यूज़ हैं सोसाइटी से ज़्यादा मिलती हैं। आप कैसी जगह पे रहते हैं, किन से बात होती है, आपके रिलेटिव्स कैसा आपसे बिहेव करते हैं, आपके मम्मी पापा कैसा बिहेव करते हैं, तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि घर का, और जो जो टीचर्स हैं वो उस तरह की मोरल वैल्यूज़ खुद के बिहेवियर में भी रखते हों। आप उनको लाख बोलो कि तुम इंस्टाग्राम रील्स मत देखो, और आप सारा दिन इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, तो वो मोरल वैल्यू फिर वो बनती नहीं है, मतलब आप बोल नहीं सकते। फिर बच्चा भी आपके सामने नहीं वो मानेगा, कहेगा ये
अब जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप लोग जाएंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, आपके अंदर बहुत ढेर सारे लोग काम करेंगे, ठीक है, आप एज अ मैनेजर जाओगे या फिर असिस्टेंट मैनेजर जाओगे, लेकिन जो एक्चुअल में वर्कर हैं वहाँ पे, तो एसओपीज तो हैं, सिस्टम्स तो हैं, आप उनको बोलोगे इसको फॉलो करो, वो नहीं करेंगे क्योंकि आप नहीं करोगे। जब आप फॉलो करके दिखाओगे कि हाँ मैं फॉलो करता हूँ, तो वो जो वर्कर है वो भी बोलेगा कि नहीं, मेरे जो बॉस है वो फॉलो करता है और मुझे करना पड़ेगा। जब आप नहीं करोगे तो बोलेगा अच्छा ठीक है, मैं जब ये रहेंगे तो देखता हूँ, जब ये नहीं है तो इस तरह की मोरालिटी पे हमें काम ही नहीं करना है कि बच्चा जब माँ बाप है तो डरा हुआ है, जब माँ बाप नहीं है तो उसकी कोई मोरल वैल्यू नहीं है। सर इट्स ग्रेट टू नो कि आपने हमें मोरालिटी पे बताया। तो अगर हम मोरालिटी को एज इन जेनरिक तरीके से देखें तो मोरालिटी को रेदर देन इनकलकेटिंग इन स्टडीज़ जो कि एकेडमिक ओरिएंटेड हो गया, आपका या एज ए जनरल व्यू ये है कि हमें उसको अपनी सराउंडिंग्स में इनकलकेट करना चाहिए। क्योंकि प्रीवियस टाइम पे भी हमने देखे अगर जाके तो गुरुकुल में भी जब शिष्य को भेजा जाता था तो वो सराउंडिंग्स से सीखता था, सराउंडिंग से कि उसके सराउंडिंग्स में लोग कैसे रह रहे हैं। तो अगर आज के यूथ को भी अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, मोरल वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो उनको अपनी सराउंडिंग्स अच्छी करनी चाहिए, अपनी ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो उनके अंदर वो मोरल वैल्यूज़ डाले। हाँ, अब देखिए इन्वायरमेंट तो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल जो इन्वायरमेंट में उनका है। अगर बच्चा छोटा है कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा उसको फॉलो करे, तो उसको उसके सामने मत करें। और उन्हीं चीज़ों को, और ये करने से क्या होगा ना, आप फेक भी नहीं कर पाएंगे, जो आपको खुद बनना पड़ेगा वो किसी। अब जैसे मानिए कोई बहुत अमीर है और वो चाहता है मेरा बच्चा ना बिगड़े, तो उसको उस तरह से बताना पड़ेगा पैसे की कीमत क्या है। मैं अमीर तो हूँ लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, जो आपकी मोरालिटी है, जो आपका बिहेवियर है, जो लोगों से वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जैसा मेरा बच्चा बिहेव करे। आप जैसे दूसरों से बिहेव करते हैं आपका बच्चा भी वैसे ही करेगा। आप अगर अपनी बेटी के साथ सही बिहेव नहीं करते हैं तो वो दूसरी लड़की से भी सही बिहेव नहीं करेगा, या आप किसी, तो ये सब मोरालिटी आप प्रेजेंट करते हैं। और पढ़ा के तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ये कारगर है। हाँ, पढ़ाना एक एड ऑन है कि आप रामायण पढ़ाते हैं, और चूंकि वहाँ पे एक डिवाइन एलिमेंट है कि हनुमान जी ने ये किया था तो मैं करूँगा, है ना, ये इस तरह का मुझे, तो वो भी एक एड ऑन है। लेकिन आपका एनवायरनमेंट ही नहीं सही है और आपके घर में ही वो चीज़ नहीं हो रही है तो बच्चा नहीं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके घर में कुछ ख़राब हो रहा है तो बच्चा उस ख़राब से सीखता है कि मैं ये तो नहीं करूँगा जो मेरे फादर ने किया है, जो मेरी मदर ने की। और उसमें भी ये जो स्क्रिप्चर्स हैं काम आते हैं कि अब जैसे आपने पूछा था कि किस तरह की कहानियाँ बताई जाए, तो जैसे नचिकेता की कहानी है, उसके माध्यम से बताया गया। अब नचिकेता की कहानी ये कि उसमें बताया गया कि नचिकेता ने देखा कि मेरे पिता तो बहुत दान पुण्य करते हैं और मैं भी करूँगा, लेकिन उसने ये देखा कि दान पुण्य तो वो ऐसी चीज़ का कर रहे हैं जो ऑलरेडी ख़राब है, जो गाय मरने वाली है वो उसको दान दे दे रहे हैं। तो ही क्वेश्चन हिज फादर जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं। तो ये आप जैसा प्रेजेंट करेंगे, लेकिन नचिकेता में वो भाव आया कि ये गलत है। या तो बच्चे में उतनी इंटेलिजेंस हो कि मेरे माता पिता जो कर रहे हैं गलत हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है जैसा माता पिता करते हैं वैसा बच्चा सीखता है। ग्रेट सर। सो मतलब जेनरिक बिलीव यही है कि रादर देन पुशिंग टूवर्ड्स एकेडमिक ओरिएंटेड मोरल वैल्यूज़, हमें थोड़ा रियल लाइफ में मोरल वैल्यूज़ को इंकलकेट करना चाहिए, एंड ऐसे इंकलकेट करना चाहिए कि वो जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होता रहे, जस्ट रादर देन बीइंग फेक, कि हम अपने बच्चे को फेक दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ देखो मैं ये कर रहा हूँ बट वो मैं एक्चुअल में नहीं कर रहा हूँ। तो हमें वो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ग्रेट। सर आपने मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में भी सुना होगा, आजकल की यूथ बहुत फेस कर रही है मिड लाइफ क्राइसिस। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले के टाइम पे ये मिड लाइफ क्राइसिस एग्जिस्ट नहीं करता था, या मैं कहूँ इतना प्रेवलेंट नहीं था, बट आजकल की लाइफ में अगर आप देखें आजकल का यूथ, ये जब वो 30s या 40s में अपने पहुंचते हैं देन दे फेस मिड लाइफ क्राइसिस। उनको अपने एग्जिस्टेंस पे शक होने लगता है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, और अगर हम करते हैं तो हम मैटर करते भी हैं यहाँ एग्जिस्ट करने के लिए नहीं। तो आपके हिसाब से इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? मिड लाइफ क्राइसिस आप बात करें जो 30s 40s में होता है, किसी का अर्ली 20s में भी हो सकता है अगर वो बहुत सी चीज़ें देखा है। मिड लाइफ क्राइसिस का दिक्कत ये क्योंकि जो आपका गोल बना था आपके टीनेज एज में या फिर आपके जो अर्ली 20s में गोल्स बने थे वो रियलिस्टिक नहीं थे। सबसे बड़ा कारण मिड लाइफ क्राइसिस का ये है। आपने 10 साल लगाया, 15 साल लगाया, कुछ चीज़ें अचीव भी की, लेकिन बाद में आपको लगा कि मैं
हैप्पी तो अभी भी नहीं हूँ। जैसे वो बोलते हैं ना, एक जनरल चलता है कि 10th पास कर लो तो हैप्पी हो गए, 12th कर लो तो फिर बच्चे हो जाए तो वो सेटिस्फैक्शन जब आपको नहीं मिलता है अपने मनपसंद का काम करने के बावजूद भी। जैसे मेरे साथ क्या था, मैं कॉर्पोरेट में था, मेरे पास कार भी थी, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मैंने 12 पे ज्वाइन किया था, मेरी उस समय तक 24 लाख पैकेज हो गया था। तो सैलरी भी अच्छी है, मेरे पास कार भी है, मेरे पास घर भी है, मेरी शादी भी हो गई है, बट स्टिल आई वॉज नॉट हैप्पी। तो वो क्या है? वो मिड लाइफ क्राइसिस ही है कि कुछ तो है, ये क्या है, ये मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। तो वो इसलिए है क्योंकि जो आपका गोल बना है लाइफ में वो रियलिस्टिक नहीं है, और इसी को वेदों में या फिर उपनिषद में आप कहेंगे 2 चीज़ों में बांटा गया है। अगर आप उपनिषद में देखेंगे तो श्रेय और प्रेय की बात की गई है कठ उपनिषद में, कि क्या श्रेय है क्या प्रेय है। तो आप में श्रेय को जाना है। श्रेय मतलब कि क्या आपकी लाइफ के लिए बेटर है, और प्रेय मतलब आपको क्या पसंद है। तो जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो लाइफ में, 2 डिसीजन लेने हैं और उनमें से एक श्रेय है एक प्रेय है, मतलब एक आपको पसंद है और एक आपके लिए अच्छा है ऑप्शन, तो आप हमेशा श्रेय के साथ जाएं। ये उपनिषद बताते हैं। उसके बाद वेद बताते हैं अविद्या और विद्या। हमारे जो गोल्स हैं वो अविद्या है, मतलब अविद्या का मतलब ये नहीं कि अज्ञान, अविद्या का मतलब ये है कि जितना भी हम सांसारिक गोल बना रहे हैं, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो, वो सब अविद्या है। जितना भी हम गोल बना रहे हैं उससे जो दूर ले जाता है वो है विद्या। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि लाइफ में अल्टीमेट गोल है क्या। लाइफ को सस्टेन करने के गोल्स होते हैं कि हमें इतना पैसा कमाना है, हमारे पास इतना मिनिमम तो हो जाए, एक कार हो जाए या ये हो जाए, ठीक है, मेटलिज्म गलत नहीं है, लेकिन कहाँ रुक के हमें ये भी देखना है कि लाइफ इज़ बियॉन्ड दिस। और मिड लाइफ क्राइसिस तभी होता है जब आपको पता चलता है कि लाइफ ये तो नहीं है डेफिनेटली जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं अचीव किया हूँ। क्योंकि अगर ये होता तो मुझे यहाँ खुश होना चाहिए था। मैंने ये डिग्री कर ली, मैंने ये अपना स्टार्टअप कर लिया, या मैंने ये जॉब कर ली, लेकिन मैं यहाँ पे खुश क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपने जब स्टार्ट किया था तभी आपका गोल जो है ना वो अलग था। अब आपको समझ में आएगा कि लाइफ इज़ बियॉन्ड दैट। लाइफ आपकी फैमिली भी है, लाइफ में बहुत कुछ है चेरिश करने के लिए, और बहुत कम चीज़ें चाहिए आपको खुश होने के लिए। बाहर की बहुत कम चीज़ें चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा तो बाहर की कुछ भी नहीं चाहिए आपको खुश होने के लिए, आपके अंदर ही सब कुछ है। तो ये चीज़ क्या है, ये बचपन से हमें नहीं बताई गई। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूँ कि बस अब ये आईआईटी करना है, मैं आईआईटी निकाल दिया, अब मैं ये जॉब क्रैक करूँगा, अब मैं मालिक बन जाऊँगा, 4 घर लूँगा, 5 गाड़ियाँ मेरी रहेंगी, और ये पावर का भी अगर आईएएस बनूँगा। ये अभी भी घर वाले कहते हैं आईएएस क्यों नहीं बन रहे हो जब आईआईटी कर लिए। अरे मुझे नहीं बनना है ना आईएएस, मुझे पता है मैं आईएएस भी बन जाऊँगा ना, मैं खुश नहीं रहूँगा। आईएएस भी बन के मैं यही सोचूंगा कि मैं कहाँ फंसा हूँ। तो इट्स बेटर कि आप अपनी जर्नी को जितनी जल्दी शुरू कर सकें आप कर लें। तब आपको समझ में आएगा कि ठीक है, मुझे मिड लाइफ क्राइसिस है, मेरे पास बहुत ढेर सारे आंसर्स तो नहीं हैं, बट मुझे ये रियलाइजेशन तो हो गया कि लाइफ ये नहीं है, कुछ और ही है, मैं उसमें अब लगूंगा। तो और जो आप बोल रहे हैं ना पहले प्रेवलेंट नहीं थी, आज है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड हैं सोशल मीडिया से, फेक चीज़ों से, और गोल हमारे, हाँ, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि है भी नहीं। कैमरा बंद होते वो चीज़ है भी नहीं। आपको तो लग रहा है ना उसने 4 सूट पहन के वो हो गया, इनकी लाइफ ऐसी है, ये कार से उतरे या ये, बट वो है नहीं है वैसा। आजकल लोग थोड़ा फेक ज़्यादा करते हैं। हाँ, क्योंकि फिर और सोशल मीडिया और कोई भी चीज़ या मूवी है वो चलेगी क्यों जब कुछ अलग नहीं दिखेगा। अगर वो नॉर्मल लाइफ दिखाएंगे तो नॉर्मल लाइफ देखेगा कौन? और नॉर्मल लाइफ एट इट्स बेस्ट बहुत बोरिंग है ना। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ इज़ बोरिंग। लाइफ से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ कुछ होने वाला है, उससे आपको एक बैलेंस बना के समझना पड़ेगा। बट लाइफ कैन बी इंटरेस्टिंग अगर हम बाहरी चीज़ों से छोड़कर अपने अंदर अपनी चीज़ों को, और छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे भी हम खुश होंगे तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल है, रेदर देन कि हम कुछ खरीद के खुश हो रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी खरीद लेंगे 10 दिन बाद उसका कुछ मज़ा नहीं है। तो यही मिड लाइफ क्राइसिस है कि आप जो सोचे थे उसको करने के बाद भी आप खुश नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि आजकल यूथ की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने लगी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और जब वो उसको समहाउ किसी रीज़न की वजह से अचीव नहीं कर पाते अपने रियल लाइफ में, तो उनको ये फीलिंग आने लगती है कि मेरी एग्जिस्टेंस मैटर करती है या नहीं करती है। तो आप इसको टैकल करने का सबसे अच्छा यही तरीका हो सकता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत लो करके रखो,
अपनी रैशनल चॉइसेस मेक करो, अपने इनिशियल डेज पे अपने आप को एक्सप्लोर करो, रैशनल चॉइस करो। एंड आपके अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिड लाइफ क्राइसिस फेस भी करते हो तो उसको सही से एनालाइज करो एंड उससे ओवरकम कर जाओ। हाँ, इसमें ये मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखिए, राइट एक्सपेक्टेशंस रखिए, लो नहीं रखना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक विचारों से चलेंगे तो आपको वो कहीं कमतर करते हैं या चीज़ों को छोड़ने को बोलते हैं, आपको खुद ही लगेगा। और जो आपने बोला मिड लाइफ क्राइसिस केवल उनके साथ नहीं है जो अचीव नहीं कर पाए, उनके साथ भी है जो अचीव कर लिए। क्या कोई व्यक्ति आपको मिला है, कितना भी सक्सेसफुल हो, आप किसी से भी मिलिए, आप उससे बस एक प्रश्न कीजिए, आप खुश हैं? कितने % लोग बोलेंगे आप खुश हैं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है कि अचीवर्स भी जानते हैं कि जो मैंने अचीव किया है उससे मुझे खुशी नहीं मिल रही है। अब जब हम 10,000 सब्सक्राइबर पे थे तो 1000 1 लाख के देखते हैं, जब 1 लाख पे आते हैं 1 मिलियन के देखते हैं, 1 मिलियन पे जाएंगे तो 5 मिलियन, हमारे साथ वाले कहाँ पहुँच गए, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो आप इसमें तो फंसे ही रहेंगे ऑल टाइम, ऑल लाइफ। तो वही कहा जा रहा है कि आपको समझना होगा कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी शांति, और उसके लिए आपको क्या अचीव करना है। हाँ, क्या अचीव करके मिलेगा। मुझे नहीं लगता बाहर कुछ भी अचीव करके मिलेगा, कितना भी आप कर लो। लेकिन ये है कि हाँ, एक सेंस आ जाएगा, एक बिलीफ आ जाएगा अपने में, खुद के लिए कुछ आप करेंगे, चाहे वो छोटा सा आर्ट वर्क हो या कुछ भी हो जो आप अपना एंजॉय करते हैं। एक फेमस फिजिसिस्ट थे, क्वांटम फिजिसिस्ट थे, फिनमैन। अब इतने बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और उन्होंने यही बोला है कि देखो, लाइफ कोई नहीं समझ सकता, बस ये है कि आप कोई चीज़ पकड़ो और उसको अच्छा करते हुए बस यहाँ से निकल लो। सो वी आर ग्लैड टू नो कि ये मिड लाइफ क्राइसिस को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। एंड मिड लाइफ क्राइसिस इज़ नथिंग, बल्कि इसका आना एक पॉजिटिव साइन भी कह सकते हैं किसी की लाइफ में, कि वन इज़ हैविंग एन अपॉर्चुनिटी टू नो कि अब उसका टाइम आ गया है उसके खुद के अंदर अपने आप को जानना, इंटेलेक्चुअली हो या हैबिचुअली हो, क्या कैसे है। And yeah, that was very great. Nextly, can we move to a very much एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कोई इजीली समझ नहीं पाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैबूज भी है इस टॉपिक को लेके। दैट्स द टॉपिक ऑफ मोक्ष, टू अटेन मोक्ष, लाइक what it exactly means according to you. एंड सेकेंडली, इज मोक्ष समथिंग कि वो सिर्फ आफ्टर डेथ ही अटेन हो सकता है, या फिर इट्स नथिंग बट अ स्टेट ऑफ इंडिफरेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल? मोक्ष पे हम बात करना शुरू ही किए थे, तो मोक्ष पे मैं वही बता रहा था कि मोक्ष की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे किसी भी धर्म दर्शन की, तो मोक्ष वही है कि आपके दुखों का निवारण हो गया। और ये गोल होता है, जैसे कि आप वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में जाएंगे तो वेस्टर्न फिलॉसफीज़ में आपको सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके पीछे लगाएंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। इंडियन फिलॉसफी में क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, उसके पीछे तो लगना है, लेकिन जब पता चल जाए तो उसको लाइफ में उतारना है। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि हमें ये चीज़ तो पता चल गई कि ब्रह्म है, या फिर हमारे अंदर एक आत्मा है, या फिर आत्मा तत्व है, उसको रियलाइज़ कैसे करेंगे, इसको भी इम्पॉर्टेंट है। तो फिर वहाँ पर समझाया गया कि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे और जब आपके दुखों का अंत होगा तो वही मोक्ष है। अब जो आप बोल रहे हैं कि डेथ पर ही मोक्ष है, तो वो डेथ पर जो मोक्ष है वो बस एक हमारी, आप कह सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि दुख आपको लग रहा, हाँ, आपको लग रहा है कि डेथ पे दुख खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि डेथ पे मोक्ष मिल सकता है। लेकिन अगर आप रियल कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो डेथ के पहले भी मिल सकता है। मोक्ष का मतलब है दुखों से बस निवृत्ति मिल जाना। या इज इट मोक्ष, इज इट समथिंग दैट एस्केपिज्म ऑफ द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ? हाँ, तो उसमें इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। मतलब एक ये है, दोनों इक्वल हैं। दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी? दुख किससे जन्म लेते हैं? कर्म से, कर्मफल है। तो कर्म जब आपके समाप्त हो जाए, कर्म कब समाप्त होंगे? जब आप कर्म करना ही उस तरह का बंद कर दें, एक्टिव उसमें पार्टिसिपेशन बंद कर दें। और इसमें भी भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि चूंकि ये प्रकृति कर्म पर आधारित है, तो आप इससे बच नहीं सकते कर्म से। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को भक्ति में लगा सकते हैं ईश्वर की। तो उसमें ये है कि जैसे जो बड़े बड़े संत हैं जो भक्ति में लगाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, तो उनके जो कार्मिक इंप्रेशन हैं, उनके फिलॉसफिकली बोले तो जो उनके सूक्ष्म शरीर पर वो घटने लगते हैं। और जब इतने घट जाएं कि वो समाप्त हो जाएं, तो दुख जब जन्म नहीं लेंगे, और जब दुख नहीं जन्म लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो वो जिंदा रहते भी मोक्ष प्राप्त कर लेते, इसलिए उनको जलाया नहीं जाता,
क्योंकि जलाने का जो कॉन्सेप्ट है, अग्नि संस्कार का कॉन्सेप्ट, वो यही है कि हम जला देंगे तो जो इनकी आत्मा तत्व है वो नया शरीर धारण करके फिर से मोक्ष की तरफ बढ़ेगी। लेकिन चूंकि ये मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए देखिए जो बड़े बड़े संत होते हैं उनको समाधि दी जाती है, उनको जलाया नहीं जाता, क्योंकि उनको माना जाता है कि ये समय रहते ही मोक्ष को प्राप्त कर लिए। और इसको उपनिषदों में ऐसे बताया गया है कि जैसे जब एक कुम्हार का घड़ा बन जाता है और वो हटा लेता है और उसका काम हो जाता है, तो चौक घूमती रहती है और अपने आप रुकती है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसको मोक्ष मिल जाता है डेथ के पहले, उसका शरीर बस वो घूम रहा है, अपने आप रुक जाएगा, मोक्ष तो उसको मिल गया है। सर, इट्स ग्रेट टू नो कि आपने मोक्ष के बारे में हमें इतनी इंसाइट्स दी। हम आपसे बातें करते रहेंगे तो बातें करते ही रह जाएंगे, ये पॉडकास्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। बट एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारे यूथ के लिए कि हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करी गई हैं और जिनको अगर हम लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं, आज के मॉडर्न एरा में प्रैक्टिस में लाएं, तो वो हमारे लाइफ को बहुत बेटर कर सकती हैं, हमारे यूथ को बहुत बेटर कर सकती हैं, हमको इंटरनल पीस या हारमनी अचीव करने में लाइफ में बहुत मदद कर सकती हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी फ़िलासफ़ीज़ एक दो अगर हमारे साथ शेयर करें जो हमारा यूथ अपनी लाइफ में इनकलकेट कर पाए, तो बहुत अच्छा होगा हमारे यूथ के लिए। देखिए, यूथ की जो प्रॉब्लम्स है मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। सबसे पहले बहुत कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने पढ़ा है और वहीं से जो आपको मैं बता पाऊँगा, सबसे पहले तो हमें बैलेंस फाइंड आउट करना है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो जो अगर आप निचोड़ करेंगे और उसमें जो 2-3 चीज़ें आपको दिखेंगी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बैलेंस। हमें क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जब फेल होते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो हमें चीज़ों को बैलेंस करना है पहले तो, अपने अपने वर्क लाइफ और हर चीज़ को ऐसे देखना है कि जैसे बोलते हैं ना, अति का भला ना बरसना, तो वो वाला बैलेंस हमें चाहिए पहले तो, कि आप जो हर दिन करना है आपको वो काम, है ना, जितना बड़ा गोल है उसको ब्रेक करके हर दिन करना है, हर दिन को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि आप इस एक हफ्ते तो बहुत मेहनत कर लिए, 2 हफ्ते फिर सो रहे हैं। तो बैलेंस करिए पहले तो चीज़ों को, भले आप 15 मिनट कर रहे हैं, 20 मिनट कर रहे हैं, बैलेंस करना है चीज़ों को, और हर चीज़ को, अपनी एंजॉयमेंट को ख़त्म नहीं कर देना है, पहले तो बैलेंस करना है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे ज़्यादा दुखी करती है यूथ को, वो है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन से हम बच नहीं सकते, कितना भी कोई बोल दे कि कंपेयर मत करो, मन में आता ही है कि इसके साथ तो ये हुआ, उसको तो वो मिल गया, इनफैक्ट हम खुद ही करने लग जाते हाँ हम हैं करेंगे ही, हमारे हाँ टर्न पे। हम कितना भी हमें पढ़ाया जाए, उसके बाद कोई आके मैं आपसे बोलूँ कि सिमरन जी मत करिए कंपैरिजन, तो आप कहेंगे आपके लिए कहना आसान है, हाँ, मेरा तो अंदर ही दिल कर नेचुरल रहा है। चीज़ है वो थोड़ी सी। तो इसलिए जब आप कंपैरिजन कीजिए तो हमेशा उनकी सक्सेस से अपने फेलियर को मत करिए। कंपैरिजन कीजिए लेकिन अपने फेलियर्स को उनके फेलियर से कीजिए। जब आप फेल हो तो आप ये देखिए ना, विराट कोहली भी तो 3 साल बिना सेंचुरी के 15 से 18 थे। तो फेलियर्स को कंपेयर करिए ना। आप क्या करते हैं कि आप अभी अर्ली स्टेज में हैं और आप अपने आप को जेफ बेजोस से कर रहे हैं कंपेयर, उनकी भी तो स्टेज देखिए अर्ली। तो जब आप अर्ली स्टेज में हैं तो उनके अर्ली स्टेज से कंपेयर कीजिए कि आज जब वो उन्होंने शुरू किया था तो कितने घंटे काम कर रहे थे, मैं कर रहा हूँ क्या। तो आपका कंपैरिजन राइट लेवल पे हो। कंपैरिजन से आप नहीं बच सकते, लेकिन कंपैरिजन आप ऐसा ना करिए कि आप यहाँ अभी फर्स्ट मान लीजिए कि ये सेकंड पॉडकास्ट है और फिर आप जैसे और कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों से, तो ऐसा नहीं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो किसी के सेकंड पॉडकास्ट से ही करिए। मेरा कंपैरिजन आपसे, ठीक है मैं उसमें अच्छा करूँगा। तो इसलिए आपका कंपैरिजन राइट चीज़ों पे होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम एलिमेंट। हम जब कोई भी प्लान करते हैं, कुछ भी लाइफ में प्लान करते हैं, तो हमें तुरंत चाहिए होता है, या फिर हम तुरंत तो नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमें ये लगता है कि जब हम प्लान करने बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ठीक है इतना पैसा हम लगाएंगे, मान लीजिए बिजनेस है, या इतनी मेहनत मैं करूँगा, 24/7 में मेहनत करूँगा, बस इतना ही हम सोचते हैं और एक प्लान बना लेते हैं। लेकिन उसमें हम कभी टाइम को कंसीडर ही नहीं करते हैं कि 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, कि 5 साल में होगा, कि 10 साल में होगा। वो ठीक है, वो फिर ऊपर वाले के हाथ में है कि वो आपको 2 साल में दे दे कि 1 साल में दे दे। लेकिन आपका तो ये कर्तव्य है ना कि उसमें टाइम एलिमेंट डालिए, क्योंकि जब आप टाइम बाउंड नहीं करते हैं ना तो आप अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं, और फिर जब आपको 1 महीने 2 महीने वो चीज़ नहीं मिलती है, 6 महीने में, तो आप गिव अप कर देते हैं। हाँ, लेकिन जब आप कहते हैं कि नहीं ये काम मैं अगर ऐसे 2 साल तक किया ना तो कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो बहुत पावरफुल थॉट है। क्योंकि जब आप तीसरे महीने पे गिव अप करने जाओगे ना, तब आप कहोगे भाई मैंने ये तो 2 साल के लिए लिया है, तो मैं अभी क्यों गिव अप कर रहा हूँ, 2 साल बाद नहीं होगा तो छोड़ देंगे, बहुत अर्ली हो गया। हाँ, तो आप जब पहले ही दिन प्लान करो कि मुझे ये बड़ा करना है, तो आपको प्लान आपका फिक्स होना चाहिए
कि भाई मेरे 5 साल का गोल है, उसका रियलिस्टिक पता हो। हाँ ठीक है, 1 आध साल आप कम कर सकते हो अपनी मेहनत पे कि 5 साल का गोल है, मैं 3 साल में ट्राई करूँगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए रियलिस्टिक उसकी वैल्यू कि वो 3 साल में होगा। तो टाइम का कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा गिव अप कराता है लोगों को। आपने वेट लॉस की जर्नी शुरू की, आपने सोचा कि मैं 6 किलो घटाऊँगा, आप एक बार बनाओ तो कि मैं 2 महीने में या 8 महीने में घटाऊँगा। तो जब आप छठे महीने 5वें महीने में पहुँचोगे, गिव अप करने की सोचोगे, तो आप कहोगे पहले मैं 8 महीने अपने कंप्लीट तो करूँ, फिर देखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले बैलेंस करना है, डेली करना है चीज़ों को, और इतना भी नहीं करना है कि आप बर्नआउट हो जाएँ। लॉन्ग टर्म गोल है तो आपको बीच में ब्रेक रखते हुए बैलेंस करना है लाइफ को। बैलेंस करने का बार-बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी करने लगते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो हमें तो कंसिस्टेंट रहना है, बैलेंस करना है, समय को एक एलिमेंट मानना है। मनी को जब हम एलिमेंट मानते हैं, अपनी एनर्जी को एलिमेंट मानते हैं, तो समय भी है ना, और उस समय को भी मानना है। एक रात में जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे 10 साल की मेहनत है, तो वो समय भी मानना है। साथ में कंपैरिजन, जब आपको लगे कि मैं हार रहा हूँ, तो जब आप भी किसी जीते हुए व्यक्ति से कंपेयर करें, तो एक बार उसकी भी हार से कंपेयर करें अपने आप को, अपनी हार को किसी की जीत से कंपेयर ना करें। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आई हैं। जब भी मेरे अंदर ऐसा होता है तो मैं इन चीज़ों पे चलता हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा, और दूसरों की जीत जो है उसको अपना मानना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य है। तो अगर किसी इंसान ने जीता है तो मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जीत सकता हूँ। तो इंक्लूसिव होना चाहिए, कोई जीत रहा है तो इंक्लूसिव रहना चाहिए कि उसको मिला है तो मुझे। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो वो जीता है तो उससे अपनी हार को तो कंपेयर मत करें, वो भी कहीं हारा होगा। यू विन सम यू लूज सम, ऐसा नहीं कि वो उसने भी हमेशा जीता होगा। तो वही है अपना कंपैरिजन अपने फील। और साथ में मैं ये कहूँगा कि आप जब भी मोटिवेशन बनाइए तो अपने रूम में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों की पिक मत लगाइए, या अपने उसमें उनकी लगाइए, लेकिन उनके उस स्टेज की लगाइए जब वो हार्डवर्क कर रहे थे। आप विराट कोहली की फ़ोटो लीजिए, लेकिन आप उनके अंडर 19 और अंडर 16 की फ़ोटो रखिए, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि ये भी तो यहाँ से मेहनत करके आए हैं। आप उनकी लगा लोगे कि अर्जुन अवार्ड मिल गया है और सेंचुरी मार ली है, तो वहाँ तक पहुँचने में तो एक जर्नी है ना 10-15 साल की, वो तो आपने फ़ोटो लगाई नहीं। तो इसलिए किसी भी बड़े व्यक्ति से आप प्रभावित होइए तो उसके पूरे काम से होइए, उसकी अचीवमेंट और सक्सेस से मत होइए। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, जो उनको करना चाहिए। इससे क्या है कि बहुत इंस्पिरेशन भी मिलेगी और पर्पस ड्रिवन रहेगा, गिव अप की चांसेस भी कम हैं इसमें। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इतनी मुश्किल भी नहीं है आजकल के हाँ। टाइम में। एज अ स्टूडेंट हम ये सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, एंड बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। बट वही है, हम कहीं ना कहीं एस्केप करने के बहाने से हम खुद अपनी लाइफ को एक्सक्यूज क्योंकि हमें जो डर रहता है ना, तो डर में ये रहता है हारने का, लेकिन डर में ये जोड़िए कि हम जीत भी गए तो क्या हो जाएगा, जीत गए तो क्या हो जाएगा। दोनों में से किसी चीज़ से किसी चीज़ से कुछ अटैचमेंट नहीं है। हार गए तो ठीक है, हार से तो कुछ सीख लेंगे, लेकिन जीत भी गए तो क्या मिल जाएगा। वो भी टेम्परेरी है, नहीं, वो भी तो जाना ही है। दैट न्यूट्रल स्टेट। हाँ, तो इसलिए काम को इसलिए कीजिए कि आपको मज़ा आ रही है ना, फिर वो जर्नी एंजॉय करने में मज़ा आएगी। तो यही चीज़ है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, आपके वैल्यूज़ से, आपके मोरल्स से, आपने जो हमें बताया। ऑल्सो जो आप काम कर रहे हैं, आपके काम से हम बहुत प्रभावित हैं। आपने जो एक मिशन लिया हुआ है कि यूथ को अपने हिस्ट्री से, अपने कल्चर से रूबरू कराने का, तो उसमें हम आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड ये पॉडकास्ट करके हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। लास्टली हम आपको अपने तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे एज अ मेमोरी, कि जिसको आप भी याद रखें और हम भी याद रखें कि हमने सर के साथ कभी पॉडकास्ट किया था। सर ये छोटा सा गिफ्ट है हमारे तरफ से आपके लिए, टेड का कप हमारे तरफ से भी एक याद रहेगी, और हम चाहते हैं आप भी अपने पास हमारी एक छोटी सी याद रखें। नहीं, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा हमें ये पॉडकास्ट करके सर के साथ। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस टिल द एंड। दिस वाज अस, Yash and Simran, along with Vishal sir. And their team with TEDx SRCC's team as well. Yeah, thank you so much, sir.